Am I audible now? Good morning. Good morning. Good morning. So in last class we were discussing about Cripps mission. Okay. So we are going to continue the same topic, Cripps mission. Cripps mission proposals. This is the topic that we are going to discuss. Year is 1942 and mark it very important for prelims exam as well as mains exam. Okay. I've already discussed with you that when August offer failed, that is also offered by Linlithgow. You all know this. So after the failure of August offer, what started? Individual Satyagraha movement started. That was not a full-scale Satyagraha. That was a limited Satyagraha. Okay, and it was Gandhi's ideas or suggestion that this is the Second World War period, and Britain is fighting with totalitarian regimes like Nazis and fascist powers. So it will not be better to mount full pressure on the British government. Okay, तो एक बीच का रास्ता, that was like a middle path कि this will not be a full scale mass movement. Individuals will start from their home, from their village, they will deliver individual speech, and then their objective is to reach to Delhi. In this way, this was Delhi Chalo movement also. Okay, so this happened, but finally, okay, uh, individual Satyagraha was not successful on mounting pressure on the British government, and on the other side, in this prolonged war, the war results were changing. War results, nahi, we can say that the war situations were changing. Now the war situations were more in the favor of Germany and Italy, Germany especially. Now in this situation, this movement declined automatically, but the situation was difficult for the Britain, and British wanted India's help and support. क्योंकि जापान भी इधर खड़ा हो रहा है ना ब्रिटेन के अगेंस्ट. ओके, तो ब्रिटेन वांट्स इंडियाज हेल्प एंड सपोर्ट. नाउ इन दिस सिचुएशन, क्रिप्स मिशन proposals, okay, are before the Indians. Now among these Cripps mission proposals, the first most important offer was what? पहला सबसे important offer क्या था? और इसको भूलना नहीं है, मेरी बात समझ गया ना, रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है, डिस्कस करना है, अदरवाइज एग्जाम में कंफ्यूजन होता है इस तरह के क्वेश्चंस पे. ठीक है ना, तो हम लोग बार बार उसको हंसी मजाक में बात करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है ना, ताकि दिस इज द फाइनल यू आर स्टडिंग, देयर शुड बी नो एनी नीड फॉर रिवीजन. रिवीजन की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. अगर जरूरत हुई, इसका मतलब एग्जाम में गलत करोगे. क्लास करो और फिर पीवाईक्यू सॉल्व करो और उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन कर ले जाओगे. तो क्रिप्स मिशन ने ऑफर क्या दिया? डोमिनियन स्टेटस का. दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू. डोमिनियन स्टेटस का ऑफर था, बट ये ऑफर क्या एक्सेप्टेबल होगा हमें? नहीं होगा. बहुत सीधी सी बात है, बिकॉज दिस इज द ईयर 1942. यू आर ऑफरिंग अस डोमिनियन स्टेटस. मांगा हमने कब था? 1928 में. And from 1930 we are fighting for what? Complete independence. Okay, so you are offering late, plus you are offering in a situation where there is no any certainty that the war results will be in the favor of which group. ये भी certain नहीं है. And your situation, your position in the war is also weak. अगर आप ये कहते कि चलो डोमिनियन स्टेटस दिया तो भी बात समझ में आती है, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हो कि डोमिनियन स्टेटस दिया. व्हाट यू आर सेइंग, वंस वॉर विल बी ended, then we will give dominion status to India. ये सबसे बुरी बात है. So Gandhi said what? It is like a post-dated check of a failing bank or a crashing bank. ठीक है ना? तो you understand the concern, and this statement is also asked in prelims exam. ठीक है ना? कि post-dated check of a failing bank or a crashing bank किसको कहा जाता है? तो क्या आंसर होगा? क्रिप्स मिशन प्रपोजल में जो डोमिनियन स्टेटस दिया गया था इसे कहा जाता है. नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा क्या है? रेड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इससे रिलेटेड प्रोविजन है. दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात भी की क्रिप्स मिशन ने. क्यों बात की? लॉजिक सोचो. पहली बात क्या कही? वी विल गिव यू डोमिनियन स्टेटस वंस द वॉर विल बी एंडेड. और डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस बता चुका हूं. इट मींस इंडियन पार्लियामेंट. ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द इंडियंस. तो इन दिस सिचुएशन डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नॉट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो चाहिए ही ना. और जब आप डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हो, तो जब दूसरा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होगा
तो क्या इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे के सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे? यस। तो दूसरी बात इसने ये कही, ठीक है, कि वंस द वॉर विल बी एंडेड, ओके, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी सेट अप एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी सोनली मेड बाय द इंडियंस। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरह से किससे मिलकर बनेगी? इंडियंस से मिलकर बनेगी। और ये बहुत बड़ी बात है, गॉट इट? They are talking about a constitution making body and they are saying that in constitution making body there will be solely Indians and this constitution making body will be for British provinces as well as princely states। दोनों को मिला के कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी होगा। तो ये तो और अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये सब कुछ कब होगा? एंड दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है, क्योंकि अंग्रेज तो शुरू से झूठ बोल रहे हैं ना। तो देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि डोमिनियन स्टेटस की बात की, तो ऑब्वियसली इफ यू विल गिव डोमिनियन स्टेटस सो यू विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात भी की क्रिप्स मिशन ने। क्रिप्स मिशन आल्सो हैड द प्रोविजन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड क्रिप्स मिशन सेड दैट ओके, वंस द वॉर विल बी एंडेड, वंस द वॉर विल बी एंडेड, ठीक है, a constituent assembly will be set up, a constituent assembly will be set up। ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नोट्स में लिखना, ठीक है ना, डोंट राइट द एंटायर स्टोरी, तो रिवीजन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। ब्रेक करके लिखो, सेंटेंसेस को ब्रेक करो तो इट विल बी इजी टू रिवाइज, ठीक है ना। ये तरीका दूसरे नोट्स बनाने में भी यूज करना है, ठीक है ना। डोंट राइट एसे टाइप नोट्स, ठीक है ना। व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स ऐसे एरो मार्क दोगे तो there will be some space also in your notes where if you want to add something later you can add, ठीक है ना। so constituent assembly will be set up और ये constituent assembly related किससे हो जा रहा है? डोमिनियन स्टेटस से। जब डोमिनियन स्टेटस होगा यानी कि इंडिया में सब कुछ इंडियंस देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस मतलब जो प्रोविंस थे, जैसे कल मैंने प्रोविंसेस के नाम भी बताए थे आपको, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू द नेम्स, प्लस प्रिंसली स्टेट्स, इन दोनों को मिला के ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ठीक है। एंड हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग विल बी solely in the hands of Indian people, solely in the hands of Indian people। ये सब कुछ इंडियन लोगों के हाथ में होगा। दिस साउंड्स गुड, दिस प्रोविजन सीम्स प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव है ना, ठीक है, कि देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, all the constitution making will be done by the Indian themselves and this constitution making body, this constituent assembly will be for the British provinces and princely states both। this is progressive, is it clear? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो मेंबर्स आएंगे दे विल कम थ्रू इलेक्शन। ये कैसे आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? यहां मेंबर्स कैसे आएंगे? इलेक्टेड मेंबर्स। एंड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स द मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड। ये तो कितना इजी है समझना है इस बात को। प्रिंसली स्टेट्स द मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कम से कम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात तो एक्सेप्ट किया कि देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी और task of constitution making will be solely done by the Indians। This is a great achievement for the India, but there is a problem। पहली प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम, दिस प्रोविजन अप्लाइज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट प्रॉब्लम कि ये प्रोविजन अप्लाई कब होगा? कल किसने देखा? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड व्हाट इज द सेकेंड प्रॉब्लम? सेकेंड प्रॉब्लम इज प्रोविंशियल ऑप्शन or local option। And what is that? If any princely state wants to opt for this constitution or this constitution assembly, it can opt। if it does not, it is free to do so। अगर आप एज ए प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू वांट टू से यस यू कैन ज्वाइन, इफ यू वांट टू से यू कैन से नो। इट मींस चॉइस इज योर्स। नाउ व्हाट विल बी द नेचुरल चॉइस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स? टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन। And in this situation, India will be divided into how many states? अंदाजा लगाओ, hundreds of smaller states। So this is like balkanization of Indian states। ठीक है, हिंदुस्तान को कई टुकड़ों में बांट देने की साजिश थी। यहां आपको ये कहना चाहिए कि आपको ज्वाइन करना ही करना है, बट व्हाट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज सेइंग, ठीक है, कि दे आर गिवन ऑप्शन टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन। तो इसमें देखो, दिस इंटायर
प्रोविजन इज व्हाट? प्रोग्रेसिव। ये पूरा का पूरा प्रोविजन क्या है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, दिस इज अ प्रोग्रेसिव प्रोविजन of Cripps mission. But there are some limitations or weaknesses. There are some limitations or weaknesses. Now, what are those limitations and weaknesses? There are two serious limitations here, right? Limitation number one. पहली weakness क्या है? Okay, that the provision will apply after the conclusion of Second World War. और कल किसने देखा? Right? This is the point here, that the provision will apply. This provision for Constituent Assembly will apply after the conclusion or end of Second World War. Conclusion of Second World War. ये पहला problem है. And the second problem is, right? Okay. Local option clause. Local option और प्रोविंशियल ऑप्शन क्लॉज. यहां दो चीजें हैं, बता रहा हूं आपको. लोकल ऑप्शन एंड प्रोविंशियल ऑप्शन क्लॉज, दोनों वर्ड लिखो. प्रोविंशियल ऑप्शन एंड लोकल ऑप्शन क्लॉज. प्रोविंशियल ऑप्शन एंड लोकल ऑप्शन क्लॉज. ठीक है. नाउ अब देखो क्या है प्रोविंशियल ऑप्शन. देयर आर 1937 के इलेक्शन में हाउ मेनी प्रोविंसेस? 11 प्रोविंसेस. कुछ में तो कांग्रेस को सीट्स मिली नहीं थी, बताया था आपको. नाउ व्हाट दिस सेज दैट if any province does not want to opt for this constituent assembly, it is free to do so. अब बताओ, आपने पाकिस्तान का ब्लूप्रिंट दे दिया कि नहीं? कौन से प्रोविंस नहीं अप्लाई करेंगे? चांसेस है कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है और जहां पीपल, क्योंकि 1940 में पाकिस्तान रिजोल्यूशन हैज कम, पाकिस्तान प्रस्ताव आ चुका है, टू नेशन थियरी हैज कम. नाउ देयर आर ग्रेटर चांसेस दैट सम प्रोविंसेस विल से नो. There are greater chances some princely states will say no. In this situation, India will be divided into many states. This is the limitation of the Cripps mission. मेरी बात समझ गया ना? This is the basic idea. Now you can write here local option means princely states free to choose or not to choose. Free to choose or not to choose. In the same way, provinces are also free to choose or not to choose. Provinces are also free to choose or not to choose. तो यहां पे this is clearly like a green signal for the formation of पाकिस्तान. ये ग्रीन सिग्नल है पाकिस्तान के लिए कि बेटा तुम कहो कि नहीं नहीं हमें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करना है. अब आपको समझ में आया हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन? विभाजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? दिस ग्रीन सिग्नल फॉर पाकिस्तान. बिकॉज इफ द प्रोविंसेस जो ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान बना, इफ दे विल से नो, इट मीन्स उनका अलग बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो ज्वाइन नहीं करे. दिस इज लाइक व्हाट? अ प्लान फॉर फर्दर डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू मेनी पार्ट्स. तो ये डिवीजन प्लान था एक तरह से. ये यहां प्रॉब्लम है. दूसरी चीज, अब आते हैं थर्ड प्रोविजन पे. इज इट क्लियर? दिस इज क्लियर नाउ? यस प्लीज. Obviously, they are free to choose this constituent assembly. It is not forced upon them. मेरी बात समझ गया ना? मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि आप पहले सहमति बनाओ. सॉल्व योर डेडलॉक्स फर्स्ट. उनको क्या करना है? आपकी आजाद. देखो आसान बात में समझो. ब्रिटिश गवर्नमेंट जितना डीले हो सके उतना डीले कर रही है. इट डज नॉट वांट टू ट्रांसफर पावर. मेरी बात समझ गया ना? क्योंकि बहुत कुछ डेवलप कर दिया इंडिया में. दे डोंट वांट टू ट्रांसफर पावर, सो दे आर बेसिकली डिलेइंग. यू आर डिमांडिंग एंड दे आर डिलेइंग. आप मांग कर रहे हो, वो टाल रहे हैं. तो टालने के तरह तरह के बहाने हैं. एक बहाना ये हो गया कि आप आजादी की मांग कर रहे हो, बट हम आजादी किसको दें? हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आजादी किसको दें? इंडियन नेशनल कांग्रेस को दें या मुस्लिम लीग को दें या प्रिंसली स्टेट्स को दें? ठीक है, तो पहले अपने डेडलॉक सॉल्व करो. और मुस्लिम लीग डेडलॉक कभी सॉल्व होने नहीं दे रही थी, आपको ये पता है. ठीक है, मुस्लिम लीग will never let this deadlock solved, or British government is using Muslim League as a tool, British to delay the okay our demand, acceptance of our demand. उसको डिले कर रहा है ये बेसिकली. और देखो एक और पॉइंट लिखो जिससे आप ज्यादा बेटर समझ जाओगे. राइट, पॉइंट नंबर 3. इसमें एक और प्रोविजन एंड दैट इज व्हाट? दिस विल मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. राइट, राइट. क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन अगेन
expressed its commitment. Cripps mission again expressed its commitment. Cripps mission expressed its commitment for the protection of for the protection of racial and linguistic minorities. Racial and linguistic minorities, for the protection of racial and linguistic minorities, express its commitment for the protection of racial and linguistic minorities. Okay, minority rights will not be compromised at any cost. This is what Cripps mission is saying, that minority rights will be given. Read this: minority rights will be given full importance. Full importance. They will not be at any cost. These minority rights will not be compromised. झगड़ा लगाने वाला फॉर्मूला. At any cost, the minority rights will not be compromised. रिलेट कर पा रहे हो आप चीजों को? 1940 पाकिस्तान रिजोल्यूशन, टू नेशन थियरी. नाउ मुस्लिम लीग इज डिमांडिंग फॉर पाकिस्तान, जिन्ना इज डिमांडिंग फॉर पाकिस्तान. और इसको कहते हैं, ठीक है, कि आग में घी डालना. क्रिप्स मिशन इज सेइंग व्हाट? Minority rights will not be compromised. We will give full weight to the minority opinion. We will give importance to the racial and linguistic minorities. हम चाहते एक कंट्री बनाना. और इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? वी ऑल नो, मल्टीकल्चरल स्टेट, डाइवर्सिटी. ठीक है, और इस डाइवर्सिटी में भी हमने क्या बनाई? यूनिटी बनाई. ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. वी डोंट हैव यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी. वर्ल्ड हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बता चुका हूं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. और अंग्रेज क्या करना चाहते हैं? उसी को तोड़ना चाहते हैं. मेरी बात समझ गया ना? तो इंडिया को वीक बनाना चाहते हैं. तो डिवीजन प्लान इधर से भी चल रहा है. नाउ लास्टली राइट वन मोर पॉइंट. नाउ फोर्थ पॉइंट इज राइट. ओके, क्रिप्स मिशन said that until the task of new constitution making is completed. Cripps mission also said that until the task of new constitution making is completed, the entire defense and military operations, the entire defense and military operations, the entire defense or military operations will be in the control of British only. The entire defense and military operations will be in the control of British only. ये भी कितनी बड़ी बात है. प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी? याद आया कुछ? कि आपने कैसे डिसीजन ले लिया कि इंडिया इज अ पार्टिसिपेंट इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर? डिफेंस से रिलेटेड इस तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इंडियंस की भागीदारी होनी चाहिए. बट व्हाट दिस इज सेइंग दैट यहां पे क्या होगा? these things will be controlled by British only. ठीक है, तो जो भी डिसीजन होगा that will be after the conclusion of second world war. Now when you look at these provisions, these are the most important. और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाएंगे, तो we don't need to read that. These 3 or 4 points इतना ही है, इतने में से ही आएगा और इसी से आप मेंस के आंसर भी लिख सकते हो. ठीक है ना? अब आप बताओ कि ब्रिटिश आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन एंड दे आर ऑफरिंग अस these terms. जब वो मुश्किल में है तब वो ऐसा ऑफर दे रहे हैं. और साथ ही साथ व्हाट इज द आउटलुक ऑफ ब्रिटिश? अंग्रेजों का आउटलुक क्या है? टेक इट और लीव इट. एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना तो अपने घर जाओ. बुरा लगेगा कि नहीं हमें? बताओ. एक तो आपको हेल्प की जरूरत है, आप हमसे हेल्प मांग रहे हो, और हेल्प मांग रहे हो तो ऐसे प्रोविजंस लेके आ रहे हो जिसमें पूरा का पूरा हमें क्या दिख रहा है? पार्टीशन प्लान दिख रहा है. और केवल टू पार्ट्स में पार्टीशन प्लान नहीं दिख रहा है. इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान का ब्लूप्रिंट इसमें दिख रहा है. दिस इज अ डिवीजन प्लान. गॉट इट? यू आर ट्राइंग टू जस्ट मेक, मतलब इंडिया की इंटीग्रिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एंड स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग दैट टेक इट और लीव इट. तो ये तो बहुत बड़ी बात है. फॉर इंडियंस दिस इज नॉट गुड. क्रिप्स मिशन प्रपोजल, इसमें एक प्रोग्रेसिव प्रोविजन है और वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. Okay, but still, okay, the British outlook was like this. Read this. Okay, the British outlook was like, the British outlook towards Indians is like take it or leave it attitude. Take it or leave it attitude. ये outlook था.
टेक इट और लीव इट एटीट्यूड, टेक इट और लीव इट एटीट्यूड, ये था। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, क्रिप्स मिशन proposals were like blueprint for India's partition. Cripps mission proposals were like blueprint for India's partition. Cripps mission proposals were like blueprint for India's partition. Cripps mission proposals were like blueprint for India's partition. Right, next point. Okay, this plan, this plan also promotes the idea of balkanization of a country. This plan also promotes the idea of balkanization of our country. But balkanization का मतलब Balkan states means there are so many smaller states ना, तो वही चीज है. This plan is also indicating towards the planned balkanization of our country. कितना आसान है क्रिप्स मिशन proposal. Now what will be the outlook of Indian National Congress? क्रिप्स मिशन ने अपना प्लान बता दिया. What is the outlook of Indian National Congress? Indian National Congress will accept it or reject it. क्या करेगी? Rejected. What will be the outlook of Muslim League? मुस्लिम लीग के पास तो पता ही है, वो लेंस लेके ढूंढ रही है पाकिस्तान मिला कि नहीं. तो क्रिप्स मिशन में कहीं पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ है, और मुस्लिम लीग को क्या चाहिए? पाकिस्तान. कहीं पाकिस्तान मेंशन नहीं, कहा हमें नहीं चाहिए भाई, हमें सीधा सीधा पाकिस्तान चाहिए. वी आर डिमांडिंग पाकिस्तान. तो मुस्लिम लीग रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट ओके द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज नोवेयर एक्सेप्टेड. तो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया. एंड आईएनसी क्रिटिसाइज्ड क्रिप्स मिशन. आईएनसी ने क्रिप्स मिशन को क्रिटिसाइज किया, कहा भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला आइडिया तो प्रोग्रेसिव है, बट ओके गिविंग लोकल ऑप्शन, प्रोविंशियल ऑप्शन क्लॉज, और यू कैन से प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ प्लान बाल्कनाइजेशन, ठीक है, गिविंग फुल वेट टू माइनॉरिटी ओपिनियन एंड इंकरेज द डिमांड फॉर पाकिस्तान इज नॉट गुड. एंड नाउ यू आर गिविंग डोमिनियन स्टेटस. दिस इज लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक व्हिच गांधी सेड. ठीक है ना, मेरी बात समझ गया ना. तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्रिप्स मिशन का. अब बताओ इंडियंस गुस्से में है. क्यों गुस्से में है? कहा देखो हम इनके बारे में कितना अच्छा सोचते, हमने सत्याग्रह भी किया तो फुल सत्याग्रह नहीं किया कि परेशान ना हो अंग्रेज, ज्यादा परेशान नहीं करना. तो इसके पहले कौन सा सत्याग्रह किया था? लिमिटेड सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह. गॉट इट? एंड व्हाट इज द आउटलुक ऑफ द ब्रिटिश? टेक इट और लीव इट का ये वाला आउटलुक. तो इस बार होगा सत्याग्रह, एंड दिस टाइम वी विल डू व्हाट? फुल सत्याग्रह. ठीक है, कि अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले. पिछली बार क्या किया था? लिमिटेड सत्याग्रह. हम आपकी इनडायरेक्ट हेल्प कर रहे थे लिमिटेड सत्याग्रह करके. हेल्प ही तो हुआ ना, कि हम आप पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहते. बट नाउ दिस टाइम लुकिंग एट द ब्रिटिश आउटलुक, व्हाट इंडियंस विल थिंक दैट दिस टाइम वी आर गोइंग टू लॉन्च फुल सत्याग्रह. दे विल अप्रोच गांधी कि गांधी बाबा अब बताओ क्या करना है. We want a full scale movement. Gandhi said that yes, this time we will do full scale movement. कहा अंग्रेज ऐसे कोई बात नहीं सुनने वाले. अब मुझे समझ में आ गया कि अंग्रेजों पे भरोसा नहीं कर सकता अभी तक. ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, तो इस बार गलती को सुधारते हैं. दिस टाइम वी आर गोइंग टू लॉन्च अ फुल स्केल मूवमेंट, एंड दिस फुल स्केल मूवमेंट विल बी व्हाट? क्विट इंडिया मूवमेंट. So always remember, Quit India movement is a movement that is in response of Cripps mission proposal. Cripps mission failed, and which movement started? Quit India movement started. Very simple. Okay, so we all know here that Cripps mission failed. Cripps mission failed. Okay, in realizing the India's political demands, and as a result, which movement started? Quit India movement started. And this is full satyagraha. This is not limited satyagraha. ये क्या है? फुल सत्याग्रह है. एंड दिस इज फ्रॉम 1942 टू 1945. 42 से लेकर 45 तक रहा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अगस्त रिवॉल्यूशन. वाई? बिकॉज हियर द मंथ वाज अगस्त. ठीक है, तो इसको अगस्त रिवॉल्यूशन भी लिखते हैं, अगस्त रिवॉल्यूशन भी लिखते हैं. 1942 टू 45. This is a full satyagrah. This is a full satyagrah. अच्छा, इसमें स्लोगन क्या है? क्विट इंडिया. वी आर आस्किंग ब्रिटिश टू क्विट इंडिया. इसका मतलब नाउ वी डोंट हैव एनी फेथ इन द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है,
हम कह रहे हैं कि नाउ यू मस्ट लीव इंडिया, ओके, एंड इंडियंस विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, वी डोंट नीड योर ट्रेनिंग, योर हेल्प एंड योर सपोर्ट, हमें आपकी ट्रेनिंग, हेल्प और सपोर्ट नहीं चाहिए, आप इतना एहसान करो कि हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, राइट? सो दिस इज द main motto. It means what is the political, what is the objective, ultimate objective of this movement? Ultimate objective of this movement is, okay, to uproot British rule from India. यही था, to uproot British rule from India, to uproot British rule from India. ठीक है, and that's why the slogan has been given, and the slogan is Quit India. Okay, we are asking British to leave India. Okay, हम अंग्रेजों से कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान छोड़ो. Okay, now the people will ask who is, obviously, okay, who is in charge of this movement? Gandhi again is in charge of the movement, in charge of the Quit India movement. But the problem is that, is Gandhi a member of Indian National Congress at this time? No. But still people are asking Gandhi that, Gandhi Baba, what should be our methods and programs? ठीक है, in this movement, what should be our methods and programs? हमारे मेथड्स और प्रोग्राम्स क्या होने चाहिए? ठीक है, नाउ व्हाट गांधी सेड इज वेरी इंटरेस्टिंग. गांधी ने क्या कहा? कहा जिसको जो मेथड यूज करना है वो मेथड यूज करो. ठीक है, इस बार मैं कुछ नहीं बताने वाला कि क्या होगी मेथड, क्या होगी स्ट्रेटजी. पहले बताया था तो लोग कमी निकाल लेते थे उसमें. ठीक है, कि गांधी बाबा के मेथड में ये कमी है. तो कहा जिसको जो समझ में आ रहा है ना, जिसको जो तरीका समझ में आ रहा है वो करो, बट कोशिश करना है कि वायलेंस ना हो. ठीक है, गांधी विल डायरेक्ट दिस. ओके, सो रेड दिस. इस समय गांधी वॉज इन कंप्लीटली इन अ डिफरेंट मूड, पूरी तरह से अलग मूड में थे. ठीक है, तो इसमें कौन से मेथड्स और प्रोग्राम्स आएंगे? तो ऑल दोज प्रीवियस फीचर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड वी कैन इनकॉर्पोरेट, सब लेके आ सकते हैं. अच्छा बताओ, इसमें बायकॉट आएगा कि नहीं? यस. पैसिव रेसिस्टेंस आएगा कि नहीं? ऑब्वियसली. ठीक है, एक्सटेंसिव बायकॉट आएगा कि नहीं? यस. नॉन कोऑपरेशन, जितना कुछ आपने पहले पढ़ रखा है ना, वो सारा, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, ठीक है, प्रोटेस्ट, सब कुछ आप लेके आओगे. तो यहाँ पे है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ स्पेशल पॉइंट लिखना है. तो अगस्त में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ओके, एंड दिस मूवमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉम्बे. ग्वालिया टैंक मैदान, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ratified the resolution for Quit India movement in August. ठीक है ना, तो you can write this that from Bombay, place is Bombay, and in Bombay, Gwalia Tank Maidan. This is fact you must know. Gwalia Tank Maidan. The place is Bombay, Gwalia Tank Maidan, and All India Congress Committee, that is AICC, ratified. All India Congress Committee ratified. Okay, the proposal, ratified the proposal for Quit India movement. ठीक है ना, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने रेटिफाई कर दिया इस प्रपोजल को, एंड द डेट वाज 8 अगस्त 1942. द प्रपोजल वाज रेटिफाइड 8 अगस्त 1922. ठीक है, तो 8 अगस्त 9 अगस्त दोनों डेट आता है तो मूवमेंट स्टार्टेड, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड. ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ. मेथड्स और प्रोग्राम्स क्या है? द प्रीवियस मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज. ठीक है, सो हियर नथिंग इज न्यू. So you can leave some space and later you can add some points here, 5 or 6 points. What are the methods or strategies? But इसमें कुछ specific features हैं that I will discuss with you. Do you understand this? August Revolution, 8th August 1942, 9th August, 8th August, 9th August, दोनों डेट लिख लो. तो इसकी बिगिनिंग मानी जाती है 8th August, 9th August. ठीक है ना, both dates you can write. 1942, this is August Revolution. Okay, now 8 अगस्त को प्रपोजल पास हुआ, अगला दिन था 9th अगस्त, एंड दिस इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड. ध्यान दो, 1939 टू 1945, दिस इज व्हाट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड है, राइट? एंड क्विट इंडिया मूवमेंट हैड स्टार्टेड. द प्रपोजल हैज बीन पास्ड ऑन 8th अगस्त. ठीक है, नेक्स्ट डे 9th अगस्त, अगला दिन है 9th अगस्त. मीन्स इन द नेक्स्ट कमिंग वीक, पूरे के पूरे 1 वीक में और 10 days, ऑल इंपॉर्टेंट आईएनसी लीडर्स वर अरेस्टेड. ठीक है, सारे के सारे आईएनसी लीडर्स को क्या किया? अरेस्ट कर लिया.
9 को ही आधे से ज्यादा लोगों को पुलिस उठा ले गई थी, गांधी भी जिसमें थे, ठीक है ना। गांधी एंड प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ आईएनसी वेर अरेस्टेड, गांधी एंड प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ आईएनसी दे ऑल वेर अरेस्टेड ऑन 9th अगस्त, और जो बचे कुचे उनको अगले 10 दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। इट मींस द फर्स्ट लाइन लीडरशिप वाज अरेस्टेड। किसी भी पार्टी में देखो, फर्स्ट लाइन लीडरशिप होती है, उसके बाद सेकेंड लाइन लीडरशिप होती है, उसके बाद एक अलग लीडरशिप होती है, ठीक है। जैसे आप लोग अपनी बाइक पे लिख के घूमते रहते हो, है ना, कि युवा अध्यक्ष इस पार्टी का हूँ, है ना, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, ऐसे लिख के घूमते रहते हो, तो वो भी एक लीडरशिप है, ठीक है। बट दैट इज ओके द ग्रास रूट लेवल लीडरशिप। सो यार ऑल प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेर अरेस्टेड। अब बताओ कितनी खतरनाक चीज है। मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ऑल प्रोमिनेंट लीडर्स आर अरेस्टेड। व्हाई अरेस्टेड? बिकॉज दिस इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। ब्रिटेन्स status position in the war is weaker, and British don't want any new challenge here. This movement is full satyagrah, so it is additional challenge for the British ना। तो इस समय वो ऐसा कोई चैलेंज नहीं चाहते, तो तरीका क्या है? ब्रूटल सपरेशन। आप वॉर में एंगेज हो, ये मूवमेंट आपके लिए परेशानी खड़ा करेगा, तो क्या करना है? ब्रूटल सपरेशन ऑफ द मूवमेंट। सो व्हाट इज द ब्रिटिश आउटलुक टुवर्ड्स मूवमेंट? What is the British response or outlook towards this movement? So the response or outlook is what? Brutal suppression of the movement, ठीक है, brutal suppression करना है। And as a part of this brutal suppression, all prominent INC leaders were arrested। सारे के सारे prominent INC leaders को arrest कर लिए, ठीक है। Now suppose these are people, this is what? Mass, and these are the leaders, leaders are arrested। And now what British will do? They had a reserved army, reserve battalion। पहले से उन्होंने एक रिजर्व बटालियन रखा था। क्यों रखा था? They were fearing, okay, रशियन इन्वेजन, जापान इन्वेजन। मतलब इसके पहले हुआ नहीं था इन्वेजन, बट दे वर fearing कि इन फ्यूचर हो सकता है रशिया कभी चला आए या जापान इन्वेजन हो जाए। सो दे हैव रिजर्व्ड द battalion for that particular purpose। In future, if Russian or Japan invasion will take place, we will counter that invasion। And what British government did? They utilized the same battalion for the suppression of क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। यानी लीडर्स को अरेस्ट कर ले गए, और आपने क्या किया? मासेस को, ब्रूटल सपरेशन ऑफ द मासेस, ब्रूटल सपरेशन, ब्रूटल सपरेशन ऑफ द मासेस। You use a reserve battalion that was reserved for future, okay, Russian or Japan invasion। The same battalion was used to suppress the masses, ठीक है। ब्रूटल सप्रेशन किया गया, लाठी चार्ज या इस तरह की चीजें, गोलियां चलाई गई। सो दिस इज व्हाट? ब्रूटल सप्रेशन। नाउ व्हाट विल हैपन? इफ यू विल ब्रूटली सप्रेस द masses, the leaders are already in jail, what will happen? If there is no one to guide the masses, if there is no one to lead the masses, तो लोगों की एनर्जी क्या होती है पता ही है आपको? जब स्टूडेंट किसी मुद्दे को विरोध करते हैं, चाहे जितना समझा के भेजो, ठीक है, कुछ ना कुछ वो तोड़ फोड़ कर ही डालेंगे, ठीक है, तो उनको बहुत गाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा? लोग सड़क पे हैं, आपने क्या किया? ब्रूटल सप्रेशन यूज किया। तो डू यू थिंक दैट इन द रेस्पॉन्स देयर आर चांसेस दैट दीज पीपल विल गेट वायलेंट? आर देयर चांसेस? यस। In response, if you will do brutal suppression, in response people will get violent, ठीक है। So write this: in response, in response the masses, okay, reacted, masses also reacted in a violent manner, masses also reacted in a, Indian masses also reacted in a violent manner। इंडियन मासेस ने भी वायलेंट तरीके से रिएक्ट किया, बट इट वाज लिमिटेड वायलेंस। और हाईलाइट करना है इस वर्ड को, लिमिटेड वायलेंस, बट इट वाज लिमिटेड वायलेंस, ठीक है, लिमिटेड वायलेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड वायलेंस? इसका मतलब ये है कि सभी अंग्रेजों को नहीं पनिश किया जाएगा, ओनली दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रूटैलिटी अगेंस्ट इंडियन पीपल विल बी अटैक्ड। दिस माइट बी पॉसिबल दैट पुलिस स्टेशंस और द सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी, जो रेल लाइन उन्होंने लगाई है उसको उखाड़ लेंगे लोग, पुलिस थाने को तोड़ फोड़ कर देंगे, ठीक है। जैसे लोगों का गुस्सा सरकार पे होता है तो सरकारी बस जला देते हैं, जो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो यही होगा ना, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड वायलेंस। तो इफ
in prelims the question is asked that, okay, there was no any violence during Quit India movement. Correct or incorrect? Incorrect. ठीक है. Quit India movement was a completely non-violent movement. Incorrect. Limited violences were used. मेरी बात समझ गया ना? और वो limited violence किसकी गलती से हुआ? ब्रिटिश की गलती से हुआ. ठीक है. how they dealt with the people. ठीक है. If you will do brutal suppression, the people will react, the masses will react, and all leaders are arrested, so there is no one to guide the masses. So this is the reason for the limited violence. अब बताओ, leader कोई नहीं है, there is no any leader. So who will be the leader of this movement? Still this movement continued from 1942 to 1945. सारे leader जेल में हैं और ये movement कब से कब तक चल रहा है? 1942 to 1945. So this movement is called self-spontaneous movement. This is also a prelims question, right? This self-spontaneous movement. Movement is what? Self-spontaneous movement. This movement is self-spontaneous movement. Self-spontaneous movement. ठीक है. स्वतः स्फूर्त. तो सेल्फ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब क्या है? द पीपल आर देयर लीडर्स देमसेल्व्स. लोग अपने लीडर खुद है. ठीक है ना? द पीपल आर देयर लीडर देमसेल्व्स. ओके, देयर इज नो एनी अदर लीडर. द पीपल आर देयर लीडर. द पीपल आर देयर लीडर देमसेल्व्स. ठीक है, लोग अपने लीडर खुद है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? द मूवमेंट इज टेकिंग इट्स कोर्स बाय इटसेल्फ. आंदोलन अपने आप अपना रास्ता पकड़ता चला जा रहा है. देयर इज नो वन टू गाइड. ठीक है ना? सो द मूवमेंट इज टेकिंग, read this, the movement is taking its course by itself. Its course by itself. ठीक है. There is no one to guide. Movement is taking its course by itself. आंदोलन अपने आप हो रहा है. ठीक है. What is the methods and programs? There is no any particular set of methods and programs. ठीक है. The people are using their own methods, actions and programs. ठीक है. So this is another important point, right? The people were using their own methods. The people were using their own methods and programs. Own methods and programs. जिसको जो समझ में आ रहा था वो वही मेथड और प्रोग्राम यूज कर रहे थे. The people were using their own methods and program. So there was no any particular objective. अच्छा बताओ, पूरे इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्या रिवॉल्यूशनरीज एक दूसरे से कांटेक्ट करके किसी कॉमन एजेंडा पे काम कर रहे हैं? नो. जब लीडर ही नहीं है तो कॉमन लाइन ऑफ एक्शन नहीं है. मेरी बात समझ गया ना? कॉमन लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं. ओके, दिस इज द पॉइंट हियर. एंड राइट नेक्स्ट पॉइंट. हु इज द लीडर? राइट दिस. ओके, a new class of leaders will emerge. New class of leaders will emerge. New class of leaders will emerge. Okay, new class of leaders जो पहले कभी कोई नाम नहीं जानता था. New class of leaders will emerge. ठीक है. At provincial level, at district level, new class of leaders will emerge. Right this. At provincial level and district level. At provincial level and district level, new class of leaders will emerge. ठीक है. And they are taking forward this movement. वो इस आंदोलन को क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं. That is happening. They are taking forward this movement. New class of leaders will emerge. Now tell me one thing, that if the British outlook is the outlook of brutal suppression of the Quit India movement, अगर क्विट इंडिया मूवमेंट का ब्रूटल सप्रेशन करना है, so can you carry forward revolutionary activities openly? No. Revolutionary activities को आप openly नहीं कर सकते. For this, what will happen? Underground, okay, movements will be one of the most important feature of this, you can say, movement. So right here, underground movements, underground movements, underground movements. इसमें underground movements है, underground activities. You can write underground revolutionary activities. Underground revolutionary activities are one of the most important feature, because the police will brutally suppress. So underground activities will be there. ठीक है.
अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज कांग्रेस रेडियो. रेड दिस. वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हियर इज कांग्रेस रेडियो. तो ये एक बहुत एक नया इन्वेंशन था कांग्रेस रेडियो. ओके, टू कनेक्ट द रिवॉल्यूशनरीज. इन लोगों ने क्या किया, अपना एक रेडियो चैनल बनाया, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग चैनल बनाया, जिससे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाते थे. दैट इज कॉल्ड, ओके, कांग्रेस रेडियो. ओके, and right here some important leaders associated with this Congress radio were Congress radio. ये prelims का question भी है. Read this. Important names associated with this Congress radio was right, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, अच्युत पटवर्धन, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, etc. etc. These are some of the important names. And the announcer of this Congress radio was Usha Mehta. This is the most important name. The announcer of this Congress radio was Usha Mehta. The announcer of this Congress radio was Usha Mehta. Clear? Announcer of this Congress radio is called Usha Mehta. Now, one other important thing was seen here, and that is what? Okay, they go. In some particular reasons, the revolutionaries did what? Okay, they set up their parallel governments. Parallel governments का मतलब क्या है? For example, in UP, there is a place called Balia district. ठीक है ना? तो बलिया डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ यूपी में? ओके, देयर वाज अ लोकल लीडर इमर्ज. पहले ही वाज नॉट पॉपुलर लीडर, नाउ सडनली अ न्यू लीडर इमर्ज्ड. जो मैंने कहा था कि जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन लीडरशिप के, दैट इज इन जेल. सो न्यू लीडर्स, चित्तू पांडे, एंड ही डिड व्हाट? ओके, with his friends, with his supporters, okay, by his efforts, what will happen? Okay, they will secure the independence of Balia from the British authorities. बलिया से सारे अंग्रेजों को भगा देंगे, ठीक है, और बलिया पे क्या करेंगे? अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेंगे. एंड दे विल से दैट द पैरेलल गवर्नमेंट हैज बीन सेट अप इन बलिया. एंड नाउ व्हाट दीस पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट द सेम विल हैपन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. पूरे भारत को आजाद करने की जगह टॉप, एक होता है ना कि टॉप डाउन अप्रोच, और दूसरा क्या होता है, बॉटम्स अप स्ट्रेटजी. अगर सोचो कि इन ऑल स्टेट्स, ऑल प्रोविंसेस, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, if the people make effort and they will free their district, they will free their state, so ultimately the country will be free. तो आइडिया ये था. तो इस तरह से क्या होता है कि बलिया में, इन द सेम वे इन बंगाल देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मिदनापुर, ठीक है, तामलुक भी एक जगह है, महाराष्ट्र में सतारा इज अ प्लेस, ठीक है, इन डिफरेंट अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी व्हाट हैपेंड, द पीपल स्टैब्लिश्ड पैरेलल गवर्नमेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड जातीय सरकार और समानांतर सरकार. तो दिस वाज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. मतलब पूरे भारत को तो आजाद नहीं करा पाए, बट अपने एफर्ट से कुछ पार्टिकुलर एरियाज को उन्होंने फ्री करा लिया, और यही आइडिया है किस चीज का, पैरेलल गवर्नमेंट्स का. दिस इज आल्सो कॉल्ड जातीय सरकार और समानांतर सरकार. सो यू कैन राइट दिस इन वेरियस, राइट दिस इन वेरियस रीजंस, इन वेरियस रीजंस, राइट, पैरेलल गवर्नमेंट्स और जातीय सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट और जातीय सरकार were established, parallel governments were established. Okay, the people freed their districts, their areas from the British control. यही है parallel government. The people freed, the people freed their areas, the people freed their areas from the control of the British. लोगों ने अपने एरियाज को ब्रिटिश कंट्रोल से फ्री करा लिया, and that is what parallel government. The people freed their areas from the control of the British. That is parallel government. Is it clear? Example you can write Balia, UP, Chittu Pandey. Example is Balia, that is in UP, and the leader was Chittu Pandey. Chittu Pandey, ठीक है. In the same way, Midnapur in Bengal, Midnapur
in Bengal and many such areas. Such parallel governments were formed and many such areas, such parallel governments were formed. ठीक है ना? Midnapur, Bengal and many such areas, such parallel governments were formed. Now, can you relate what is the meaning of spontaneous? What are the elements of spontaneity in the 1942 Quit India movement? This is elements of spontaneity. No leaders, the people themselves are their leaders, they are guiding their actions, they are guiding their plan. Okay, there are different plan, different strategies working together. Okay, the people are filled with patriotic sentiments and they are capable of making their particular areas free from the control of the British. That is the idea of parallel government. ठीक है ना? A new class of leadership emerged, and even in the absence of leaders, this movement continued for nearly 3 years, and that is a great achievement. And that's why a spontaneous movement. Quit India movement, was it completely non-violent movement? The answer is no. Violences on limited scale were used. Okay, and now participation. About participation, that who participated in this Quit India movement? Quit India movement में जोर शोर से पार्टिसिपेशन किसने किया? तो सबसे शानदार पार्टिसिपेशन जिसका होगा वो कौन है? स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यूथ पार्टिसिपेट करेंगे, इवन पीजेंट्स विल पार्टिसिपेट, वर्कर्स विल पार्टिसिपेट. ठीक है ना? women will participate in large numbers. ठीक है, business class will support this movement, and they all are supporting because they all know कि आज़ादी क्या जो टाइम है वो नज़दीक है. ठीक है, if we will make effort, India will be free from the British control. It means the people participated in large numbers. Okay, this will happen. ठीक है, दूसरी चीज क्या है? ऑफिशियल सपोर्ट किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का. In Quit India movement, who gave the official support to Quit India movement? So the answer is Indian National Congress. So all Congress leaders were in jail. सारे के सारे कांग्रेस लीडर को उठा के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? जेल में डाल दिया. This movement was officially supported by which party? Indian National Congress. What is the result? Read this. All INC leaders were imprisoned. All INC leaders were imprisoned. सारे के सारे लीडर जेल. अब दूसरी पार्टी के बारे में जरा बात करें, मुस्लिम लीग. ठीक है, मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग का क्या आउटलुक है? एंड दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. देखो, इन 1939 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन. कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया ना, क्यों रिजाइन किया? आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना इंडियन से पूछे इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पार्टी बना दिया था. नाउ व्हेन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड, मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस. उन्होंने कहा अच्छा हुआ कांग्रेस वालों ने रिजाइन कर दिया. ठीक है, दिस इज व्हाट? डे ऑफ डिलीवरेंस फॉर अस. तो उन्होंने क्या मना लिया? मुक्ति दिवस मना लिया. दैट वाज 22 अक्टूबर 1939. ये एक आइडिया है जो लिख सकते हो आप यहाँ. वी आर टॉकिंग अबाउट आउटलुक ऑफ मुस्लिम लीग, बट हियर राइट हियर 22 अक्टूबर 1939. राइट दिस. Resignation of Congress ministries. Resignation of Congress ministries. Resignation of Congress ministries was celebrated by Muslim League. ठीक है, resignation of Congress ministries was celebrated by Muslim League. पार्टी मनाया मुस्लिम लीग. Resignation of Congress ministries was celebrated by Muslim League. और सेलिब्रेशन का नाम क्या दिया? डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस. राइट दिस. This was the name of the celebration, Day of Deliverance. Day of Deliverance. ठीक है, Day of Deliverance. ठीक है, मुक्ति दिवस, Day of Deliverance. ठीक है ना, मुक्ति दिवस. शादीशुदा लोगों की बीवियां जब भी मायके जाती हैं तो वो लोग यही डे सेलिब्रेट करते हैं, डे ऑफ डिलीवरेंस. ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने भी मना लिया डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस. इसके बाद राइट दिस सेकेंड 1940. ठीक है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन एंड टू नेशन थियरी. पाकिस्तान रिजोल्यूशन एंड टू नेशन थियरी हैज कम. 1940 में क्या आ चुका है? पाकिस्तान रिजोल्यूशन एंड टू नेशन थियरी. 1940 पाकिस्तान रिजोल्यूशन एंड टू नेशन थियरी. यानी 1940 के बाद मुस्लिम लीग की डिमांड क्या है?
सेपरेट नेशन पाकिस्तान। ये डिमांड 1940 के पहले नहीं था। नाउ मुस्लिम लीग इज डिमांडिंग फॉर व्हाट? एंड आफ्टर 1943 मुस्लिम लीग डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान। अच्छा, इनका सपना कौन पूरा कर सकता था? जो सपना दिखा रहा था, कौन? ब्रिटिश। अगस्त ऑफर में क्या बोला लिनलिथगो ने? फुल वेट टू द माइनॉरिटी ओपिनियन। क्रिप्स मिशन ने क्या किया? वही वादे को दोबारा रिपीट किया, कहा वी विल प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स, फुल वेट टू द माइनॉरिटी ओपिनियन। तो बताओ इनका सपना कौन पूरा कर सकता था? ब्रिटिश। और क्विट इंडिया मूवमेंट किसके खिलाफ था? उसमें हम क्या करें? क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब मुस्लिम लीग को चिंता हो गई, अगर हमारा वाला मामला बिना सेटल किए अंग्रेज चले गए तो फिर क्या होगा, कैसे मिलेगा पाकिस्तान? सो व्हाट इज द आउटलुक ऑफ मुस्लिम लीग? विल दे सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट? नो, इंस्टीड दे विल सपोर्ट हूम? ब्रिटिश गवर्नमेंट। यही तो है डिवाइड एंड रूल। देखो, नेशनल मूवमेंट चल रहा है और मुस्लिम लीग, देखो आजादी मिलेगा तो मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिलेगा ना, लेकिन आजादी मिलने से पहले ही मुस्लिम लीग किसको सपोर्ट कर रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई मिलावट है या कुछ प्रेजुडिस्ड है। दिस इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो राइट दिस, मुस्लिम लीग डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, मुस्लिम लीग डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। राइट, ओके। तो हमने नारा क्या दिया क्विट इंडिया मूवमेंट में? क्विट इंडिया। और मुस्लिम लीग ने क्या स्लोगन दे दिया? दे आर सपोर्टिंग ब्रिटिश एंड दे आर सेइंग डिवाइड एंड क्विट। कहा क्विट करने से पहले अपना काम करके जाओ, डिवाइड एंड क्विट। ठीक है, तो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट मुस्लिम लीग इज सपोर्टिंग ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड द स्लोगन ऑफ मुस्लिम लीग इज डिवाइड एंड क्विट। अब भाई हमारा वाला काम पूरा करके जाओ, पहले मत जाओ, पहले ये वाला काम करो फिर क्विट करना। डिवाइड एंड क्विट, दिस इज द स्लोगन ऑफ मुस्लिम लीग। दिस वेरी इंटरेस्टिंग, डिवाइड एंड क्विट। मुस्लिम लीग ने कहा कि डिवाइड एंड क्विट। ठीक है, अब हम थोड़ी बात करते हैं कम्युनिस्ट की। ठीक है, कि कम्युनिस्ट का क्या आउटलुक रहा? व्हाट इज द आउटलुक ऑफ कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट का क्या आउटलुक है? तो देखो, obviously there is a communist party of India, there are socialists who are supporting India's war of independence, वो इंडिया के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे थे। बट what happened during second world war? second world war में क्या हुआ? if you look at the parties of war, तो पहले यहाँ कौन है? ब्रिटेन और फ्रांस। यहाँ कौन है? जर्मनी, इटली। बाद में इसको ज्वाइन कौन करता है? जापान। एंड लेटर दिस इज ज्वाइंड बाय व्हिच ग्रुप? रशिया। पहले रशिया साथ नहीं था, तो रशिया साथ नहीं था तो कम्युनिस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ थे। लेकिन कम्युनिस्ट का चाचा कौन है? रशिया। व्हेन रशिया विल ज्वाइन, व्हेन रशिया विल ज्वाइन दिस ग्रुप, तो अब तो रशिया किसका दोस्त हो गया? ब्रिटेन का। और क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडिया इज डायरेक्टेड अगेंस्ट ब्रिटेन। अब कम्युनिस्ट फंस गए, उनके सामने धर्म संकट आ गया, हम सपोर्ट किसको करें? इफ यू विल सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट इट मींस वी आर नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग रशिया। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आउटलुक ऑफ कम्युनिस्ट? विल दे सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट? नो। व्हाई? बिकॉज in between now Russia has joined this group, Britain and France. Okay, so communists will not support, but at individual level many communist leaders will provide their help and support. मेरी बात समझ गए ना? जैसे एक होता है ऑफिशियल स्टैंड और एक होता है इंडिविजुअल स्टैंड और पोजीशन। तो ऑफिशियल स्टैंड क्या है? नॉट सपोर्टेड, बहुत क्लियर है। राइट, दिस ऑफिशियल स्टैंड डिड नॉट सपोर्ट। राइट, ऑफिशियल स्टैंड इज ओके, डिड नॉट सपोर्ट। ऑफिशियल स्टैंड they did not support. Okay, did not support. Clear? Official standard did not support. Okay, तो ये बात समझ में आई। इंडिविजुअल सपोर्ट है, सपोर्ट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी इज देयर। ठीक है, इसके बाद ये बात आप समझ गए ना कि दिस इज द पार्टिसिपेशन, अबाउट पार्टिसिपेशन द थिंग्स आर क्लियर। नाउ वी आर मूविंग अहेड। नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड 1942 टू 1945, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके, limited violences on limited scale, that is also called limited violences, were seen. Limited violence तो हुआ, it was not a completely non violent। और प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है,
They will write the statement that Quit India movement was a completely non-violent movement. तो ध्यान से पढ़ना. Simple question they will ask. ठीक है ना? Now I am telling you one thing that before this, whenever there is any mass movement, जैसे राउलेट सत्याग्रह, जालियांवाला मैसेकर के बाद गांधी विल से हिमालयन ब्लेंड, लोगों को अपना गुस्सा मतलब अपना आपा नहीं होना चाहिए. पीपल शुड बी इन कंट्रोल. सत्याग्रही उनको होना चाहिए. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको याद है, चौरी चौरा इंसिडेंट, इट वाज सस्पेंडेड. ठीक है. नाउ दिस टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट इज इन प्रोग्रेस and there is limited violence. Now British authorities will ask Gandhi. अब ब्रिटिश अथॉरिटीज सीधे जेल में जाएंगे, कहेंगे गांधी बाबा, गांधी से क्या है बताओ, एक फास्ट और कर लो आप, फास्ट अंटिल डेथ, जो आपका तरीका है. इफ यू विल ऑब्जर्व फास्ट, अगर आप भूख हड़ताल पे बैठ जाओगे तो वायलेंसेस विल स्टॉप, हिंसा रुक जाएगी. नाउ गांधी विल से व्हाई आई शुड सिट ऑन फास्ट, कहा मैं फास्ट पे बैठूं क्यों. इस बार मैं कोई फास्ट ऑब्जर्व नहीं करने जा रहा. आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व एनी फास्ट बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायलेंस. तो गांधी इज इन अ कंप्लीटली चेंज्ड मूड. वायलेंस हो रहा है एंड गांधी डिड नॉट ऑब्जर्व फास्ट. एंड व्हाट इज सेइंग दैट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वायलेंसेस. ब्रिटिश अथॉरिटीज themselves are responsible for these violences. अगर आपने लोगों की बात को सेंसिटिव ढंग से सुना होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती. राइट दिस. गांधी डिनाइड टू ऑब्जर्व, गांधी डिनाइड टू ऑब्जर्व any fast, okay, any fast. Gandhi denied to observe any fast for the purpose of for the purpose of stopping violences, for the purpose of stopping limited violences during Quit India movement, for the purpose of stopping limited violences during Quit India movement, for the purpose of stopping limited violences during Quit India movement. गांधी ने डिनाई कर दिया for the purpose of, okay, मेरी बात समझ गए, stopping limited violences during Quit India movement, comma, as it was requested by the British authorities, as it was requested by the British authorities, as it was requested by the British authorities. गांधी ने डिनाई कर दिया. ठीक है. And Gandhi said that British themselves are responsible for these violences. Okay, Gandhi said that. Right, this point. Gandhi said that British authorities themselves are responsible. Gandhi also said that British authorities themselves are responsible for these violences. इस हिंसा के लिए अंग्रेज खुद जिम्मेदार है. British authorities themselves are responsible for these violences. आसान है, समझ में आया आपको क्विट इंडिया मूवमेंट. नाउ व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस क्विट इंडिया मूवमेंट. इसका रिजल्ट या आउटकम क्या है. व्हाट इज द रिजल्ट और आउटकम. तो 1942 टू 1945, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, अंग्रेजों को भारत से भगाना. वाज इट सक्सेसफुल. ओके, नो. तो क्या लिखना है, वही सेम आंसर. यू ऑल नो दिस, दैट इट्स ट्रू दैट this movement was not successful in realization of its objective, that is what, uprooting British rule from India, but it is significant due to various reasons. जैसा पहले बताया, सेम द सेम लाइन. अच्छा देखो, एक मॉडल पे जब आंसर तैयार करोगे सो इन एग्जाम इट विल टेक लेस टाइम टू प्रेजेंट द आंसर. मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, रेडीमेड चीजों को बनाओ, कुछ फॉर्मेट्स तैयार करो, उसको पढ़ो. ठीक है, एक कंटेंट को बार बार पढ़ो, बिकॉज एग्जाम में आपको लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. दैट इज अ ग्रेट चैलेंज, ओके, टू राइट इन द एग्जामिनेशन. इन एग्जामिनेशन ऑल यू आर गोइंग टू परफॉर्म एवरेज. हमेशा याद रखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप दूसरों को ज्ञान देते रहोगे कि मैंने ऐसा परफॉर्म किया था, वैसा किया था, लेकिन जब आप अपने मन से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कैसा परफॉर्म किया था. फिर कभी कभी कहोगे यार यार इतना नंबर आ कैसे गया मैंने तो ऐसा लिखा ही नहीं था. ये भी फीलिंग आती है, ठीक है, लेकिन लोग इस भाव को छुपा जाते हैं. ठीक है, तो इससे नए बच्चों को परेशानी होती है. फिर टीचर डराने लगते हैं बच्चों को कि देखो इतना डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं. तो यू विल परफॉर्म एवरेज, this you should always remember. So never compare your answers with, ठीक है, the ideal answer that are projected before you.
वो आइडल आंसर लिखने में टीचर को 1 घंटा लगा होगा, एक आंसर लिखने में, ठीक है। नाउ result or outcome 1942 to 45. I hope you can write this point that it is true that it was not successful in realizing its objective, but still it was significant due to a variety of reasons. वो क्या क्यों significant है आप आगे समझ जाओगे। कुछ पॉइंट्स तो कॉमन है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, इट पेव्ड द वे फॉर द future political struggle, consolidated the nationalist feelings and sentiments of the masses, mounted pressure on the British government because this time in movement limited scale violences were also used, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बट व्हेन आई विल डिस्कस द फर्दर इवेंट्स यू कैन गेट सम न्यू पॉइंट्स फॉर दिस आंसर, ठीक है ना। आउटकम या सिग्निफिकेंस के कुछ नए पॉइंट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 1942 to 45, this concept is very important, okay। on one side Indian Nation Congress is saying what, Indian Nation Congress का स्लोगन क्या है, quit India। INC is asking from the British government, quit India, Bharat Chhoro। And INC has also given official support, INC has also given official support to quit India movement। INC ने क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑफिशियल सपोर्ट भी दिया है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, लुक एट द आउटलुक ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का क्या है, मुस्लिम लीग क्या कह रही है, डिवाइड एंड क्विट, डिवाइड एंड क्विट, दिस इज व्हाट मुस्लिम लीग सेइंग। And Muslim League supported Quit India movement or not? So the answer is no. It means this is a clear state of deadlock between these two important political parties. ये सबसे clear state है deadlock का, ठीक है, clear state of deadlock between these two political parties, INC and Muslim League. Okay, and using this deadlock, British government, British Indian government is doing what? They are using this deadlock as a tool, they are using this deadlock as a tool, and by using this tool they are basically delaying our demand for independence, they are delaying our demand for independence। इसी का बहाना लेके अंग्रेज बार बार क्या करते हैं, हमारे इंडिपेंडेंस की मांग को टाल दे रहे हैं या फिर डिले कर रहे हैं। सो दे आर यूजिंग दिस एज अ टूल। जब आप अंग्रेजों से मांगने जाओगे आजादी, वो कहेंगे किसको देना है, पहले ये बताओ आजादी किसको दे, आपको दे या आपको दे, आईएनसी को दे या मुस्लिम लीग को दे। आप चाहते हो आपको आजादी दे दे और मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ हम इंजस्टिस कर दे। अब आपका मुंह बंद। वो कहेंगे जाओ पहले झगड़ा सॉर्ट आउट करो, पहले डेडलॉक सॉल्व करो और फिर आके बोलो कि हमें चाहिए आजादी। दिस इज द पॉइंट। नाउ गांधी इज वेरी वॉरीड, गांधी वॉज इन जेल, गांधी जेल में और बहुत चिंता में, ठीक है, एकदम जेल के कमरे में इधर से उधर टहल रहे हैं गुस्से में, ठीक है, अपने बाल खींच रहे हैं गुस्से में कि नहीं क्या हो रहा है, ये डेडलॉक नहीं सॉल्व हो रहा है। देन अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विल गो टू मीट गांधी, दैट इज राजगोपालाचारी, and they will ask Gandhi that I will find the solution, I will solve this deadlock। गांधी ने कहा करके देख लो बेटा, ठीक है, तुम भी ट्राई कर लो। देन आफ्टर सम टाइम अनदर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विल मीट गांधी, दूसरे लीडर जाएंगे बोलते भटकते, उनका नाम था भोला भाई देसाई, एंड दे विल से दैट गांधी बाबा गिव मी द अपॉर्चुनिटी, आई विल सॉल्व दिस डेडलॉक। गांधी ने कहा बेटा तुम भी ट्राई करके देख लो। इट मीन्स बिटवीन द सेम पीरियड टू अटेम्प्ट्स वर मेड to solve the deadlock between INC and Muslim League। So read this. During this period, right? During this period, during this period, two significant attempts were made. During this period, two significant attempts were made to solve. Two significant attempts were made to solve the deadlock between to solve the deadlock between INC and Muslim League. Two significant attempts were made to solve the deadlock between INC and Muslim League. Two significant attempts were made. So one attempt is called Rajgopalachari formula. One attempt is called Rajgopalachari formula 1944. And the second such attempt
is known as Desai Liaquat talks. Desai Liaquat talks 1945. Two such attempts were made. तो पहली बात आपको याद रखनी है इस टॉपिक में क्या, राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या है, इट इज एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द डेडलॉक बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग. व्हाट इज देसाई लियाकत टॉक, अटेम्प्ट टू सॉल्व द डेडलॉक बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग. ठीक है ना, तो ये है. नाउ देखो, राजगोपालाचारी विल मीट गांधी, ओके, and after consultation Rajgopalachari will come with a formula and he is expecting or hoping that this formula will solve the deadlock. उनको ये लग रहा है कि ये formula deadlock को solve कर देगा. Now what is the points in this formula? इस formula में क्या points हैं? ठीक है, राजगोपालाचारी formula में, right? point one, okay, what is saying, ध्यान से पहले समझ लो फिर point को लिखना. राजगोपालाचारी is saying that, okay, पहला काम ये करना है कि this is the transition phase. It means we are fighting for independence. So Indian Nation Congress and Muslim League both should come together. ठीक है, in this phase of transition both should cooperate with each other, both should form a provisional government, and once, okay, and once this transitional period is over, okay, we will decide what to do. ठीक है, कि जब ये ट्रांजिशनल पीरियड खत्म हो जाएगा तब डिसाइड करेंगे. और डिसीजन कैसे होगा, व्हाट इज सेइंग, सेकंड पॉइंट, ही इज सेइंग दैट you are saying that Muslim majority areas, okay, should be united to form Pakistan. Muslim majority areas जो है उनको मिला के क्या कर दो, पाकिस्तान बना दो. Rajgopalachari is saying that a plebiscite will be done in those particular areas. Plebiscite means getting public opinion, जनमत संग्रह, लोगों से पूछा जाएगा कि भाई आप पाकिस्तान चाहते हो कि नहीं. And if people will vote in this favor, अगर लोग ये तय कर दें कि हाँ हमें पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए, तो द डिसीजन विल बी टेकन. बट जो भी डिसीजन होगा वो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के बाद होगा. यानी कि अंग्रेज पहले भारत को आजाद कर देंगे, समझो इस बात को. इट मींस पावर विल बी ट्रांसफर्ड फर्स्ट टू इंडिया एंड देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, will conduct plebiscite in those areas, and the people, if the people say that yes we want Pakistan, we will give Pakistan. ठीक है, लेकिन पहले पावर ट्रांसफर होना चाहिए किसके हाथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में. और जब पावर ट्रांसफर होगी उस समय एक प्रोविजनल गवर्नमेंट होगी, उस प्रोविजनल गवर्नमेंट का हिस्सा दोनों होंगे. मेरी बात समझ गया ना, आईएनसी भी उसका हिस्सा होगी, मुस्लिम लीग भी उसका हिस्सा होगी, और मिलके हम डिसाइड करेंगे. थर्ड पॉइंट इज, इफ इन केस द पीपल से दैट यस वी वांट पाकिस्तान, okay, so partition will be done, but the partition will be done only on essential matters. Essential matters will be transferred. मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान अभी टू सेपरेट एंटिटीज हैं, वैसा नहीं होगा, कुछ एसेंशियल मैटर्स ट्रांसफर किए जाएंगे. ये मुद्दा है, ठीक है ना, ये चीज है. बट सबसे पहले पावर ट्रांसफर किसके पास होनी चाहिए, ठीक है, इंडिया के पास. एंड इंडिया विल डिसाइड व्हाट टू डू द नेक्स्ट. व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग विल से बेवकूफ समझ रखा है, पहले पावर तुम चाहते हो कि अंग्रेज चले जाए, पावर ट्रांसफर तुमको कर दे, फिर तुम डिसाइड करोगे. नहीं किया तो मुस्लिम लीग ने कहा दैट्स व्हाई वी आर सेइंग व्हाट, डिवाइड एंड क्विट, पहले बंटवारा करो और फिर जाओ. एंड यू आर सेइंग दैट फर्स्ट क्विट, ट्रांसफर पावर टू इंडिया एंड देन इंडिया विल डिसाइड व्हाट टू डू द नेक्स्ट. मुस्लिम लीग विल से नो नो नो, हम इतने बेवकूफ नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला. तो मुस्लिम लीग वाज वेरी एडमेंट नॉट टू एक्सेप्ट एनी सॉल्यूशन. मुस्लिम लीग इस बात पे अड़ी हुई थी, उसको कोई सॉल्यूशन ही नहीं चाहिए था. और आप जो प्रपोजल लेके जा रहे हो कि बेटा ये ले लो सॉल्यूशन, आप क्या कर रहे हो, अपीज कर रहे हो. वो अपीजमेंट जरूरी ही नहीं है. मेरी बात समझ गया ना. हिस्ट्री में बार बार लिख रहा है वन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी वाज आईएनसी, सेकंड वाज मुस्लिम लीग. दूसरी भी तो पॉलिटिकल पार्टीज है, इतना इंपॉर्टेंट बनाया क्यों, बनाओगे तो भुगतना पड़ेगा. द सेम इज हैपनिंग. ओके, so this is Rajgopalachari formula. So write this point. Okay, Rajgopalachari formula में write point 1. Okay, that INC plus Muslim League, INC plus Muslim League, both should cooperate with each other. Both should cooperate with each other. Both should cooperate with each other for India's independence.
फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। दोनों को साथ मिल के लड़ना चाहिए इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। INC and Muslim League both should cooperate with each other for India's independence. Okay, INC and Muslim League both should cooperate with each other for India's independence. और दूसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, what is the second point? Both should cooperate with each other for India's independence. Okay, right. Second point, that INC and Muslim League both should form a provisional government for this transitional phase. INC and Muslim League both should come forward and should form a provisional government for this transitional phase. INC and Muslim League both should come forward and both should form a provisional government for this transitional phase. For this transitional phase, both should form a provisional government for this transitional phase. And write the third point. Okay, in case of transfer of power, in case of transfer of power, ठीक है, पावर विल बी ट्रांसफर्ड टू इंडिया, और इंडिया में क्या है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जिसका हिस्सा कौन है, मुस्लिम लीग भी है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल है। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर विल बी ट्रांसफर टू इंडिया विच इज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट इन विच मुस्लिम लीग इज अ पार्ट। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर विल बी ट्रांसफर्ड टू इंडिया। In case of transfer of power, power will be transferred to India, which has a provisional government in which Muslim League, okay, is a part of it. Muslim League is a part of it. Muslim League इसका हिस्सा है. Muslim League is a part of it. अच्छा, आपको अब लॉजिक समझ में आ रहा है कि who is responsible for partition? इस पे भी हम बात करेंगे. Now you are getting some idea ना? Okay, right. Fourth point that, okay, plebiscite will be done. Write this after, ऐसे लिख दो, after transfer of power to India, after transfer of power to India, a plebiscite will be done. After transfer of power to India, a plebiscite will be done in Muslim majority areas. After transfer of power to India, a plebiscite will be done in Muslim majority areas. A plebiscite will be done in Muslim majority areas, right? A plebiscite will be done in Muslim majority areas. Muslim majority areas में क्या होगा? A plebiscite will be done. Okay, and okay, people's opinion will be given importance, and people's opinion will be given importance. If Muslim masses will say yes to partition, if Muslim masses will say yes to partition, then partition plan will be applied. If Muslim masses will say yes to partition, then partition plan will be applied. If Muslim masses will say yes to partition, then partition plan will be applied. उसके बाद ये partition plan क्या होगा? Apply हो. ठीक है? Right, next point. Okay. Then partition plan will be applied. Right, next point. In case of partition, only essential matters will be transferred. In case of partition, only essential matters will be transferred. In case of partition, only essential matters will be transferred. In case of partition, only essential matters will be transferred. Partition होगा तो only essential matters will be transferred. This is the idea. ये बात आप समझ पा रहे हो? Can you relate these points? अब क्या बिना रट्टा मारे इन पॉइंट्स को आप याद नहीं रख सकते? Easily रख सकते हो. Now again I am repeating what is Rajgopalachari formula. During Second World War period, 1944, okay, it was an attempt to solve the deadlock between INC and Muslim League. Rajgopalachari proposed this formula, and what is this formula? That first, what will happen? Transfer of power will be done to India. Okay, India, a provisional government will be formed, and in this provisional government, Muslim League will be a part of this government. This provisional government is formed for this transition period. Once the power will be transferred, okay, then what will happen? Muslim majority areas, a plebiscite will be conducted, and the people's opinion will be given importance. So if the people will say yes to Pakistan, then Pakistan will be given, and if they will say no, then no Pakistan. Got it? And in case of
a new country Pakistan, in case of creation of a new nation Pakistan, what will happen? Okay, only essential matters will be transferred. तो ये बैलेंस तो है, इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? इसके पहले भी तो आपने पॉइंट्स को देखा था ना, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि कैसे कैसे नेहरू रिपोर्ट में कितने अच्छे प्रपोजल्स थे, बट स्टिल मुस्लिम लीग read this. Muslim League was adamant and was not ready to accept this offer. Muslim League rejected this offer. Muslim League rejected this offer. तो बड़ा ही मजेदार कहानी चल रहा था। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके ऑफर को रिजेक्ट कर रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और इधर मुस्लिम लीग किसके ऑफर को रिजेक्ट कर रही थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मुस्लिम लीग इज वर्किंग लाइक अ टूल फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जितना डिले करना चाहे इंडियन इंडिपेंडेंस की डिमांड को, उतना डिले कर सकती है विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, तो इट वाज, ये इस बहुत को तैयार किया था खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1906 में अपने फायदे के लिए। तो अभी तक फायदा पहुंचा रही थी मुस्लिम लीग। नाउ द सेकंड पॉइंट, रेड दिस आई लियाकत टॉक। तो दिस प्लान, दिस फॉर्मूला वाज फेल्ड। नाउ गांधी वाज अगेन वेरी मच टेस्ट, ये वाला प्लान भी फेल हो गया। नाउ भूला भाई देसाई, भूलते भटकते will reach to Gandhi and he will say that this time I have a very unique and brilliant idea and I will be able to solve the deadlock between INC and Muslim League. गांधी said तुम भी ट्राई करके देख लो, वैसे यूनिक क्या है? भूला भाई देसाई said that this time I am going to make plan, okay, and in this plan one leader of Muslim League, that is Liaquat Ali Khan, okay, is with me. Both of us will sit and will design a plan and this will be able to solve the deadlock. तो इस प्लान में ये कितने लोगों का आइडिया है? दो लोगों का, एक भोला भाई देसाई और दूसरा लियाकत अली खान। भोला भाई देसाई इज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लियाकत अली खान इज द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, सो राइट दिस, भोला भाई देसाई, वन नेम इज भोला भाई देसाई एंड द सेकंड नेम इज लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, तो ये मुस्लिम लीग के लीडर थे and he is the leader of Muslim Indian National Congress. Now they suggested a plan, and what is the plan? That is also very interesting. They suggested a plan, and what is the plan? तो देखो प्लान क्या है। ओके, राइट, पॉइंट वन। ओके, इन्होंने सीधा ये ऑफर कर दिया कि रेड दिस, मुस्लिम लीग प्लस आईएनसी both should work together to secure independence of India. Both should work together to secure independence of India. Indian National Congress and Muslim League both should work together to secure independence of India. ठीक है, दोनों को साथ मिलके काम करना है। Got it? INC and Muslim League both should work together to secure independence of India. ठीक है, INC and Muslim League both should work together to secure the independence of India. दूसरी बात देखो, after independence what they are saying? They are saying that in central legislature, जिसको आप इंडियन पार्लियामेंट कहते हो, they are saying that in central legislature, ठीक है, there will be the equal number of members from Indian National Congress and Muslim League. Central legislature, ठीक है, equal number of members from INC and Muslim League. INC and Muslim League, equal number of members from INC and Muslim League. Second point, 20% reservation for the minorities, जिसमें Muslims भी आ गए। 20% reservation for the minorities. 20% reservation for the minorities. 20% reservation for the minorities. ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? मुस्लिम लीग का क्या कहना था कि इंडिया में मुस्लिम्स का पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर नहीं है, इससे ज्यादा और पॉलिटिकल फ्यूचर कैसे सिक्योर हो सकता है? ठीक है, yet Muslim League rejected this plan. Read this. Muslim League finally rejected this offer. मुस्लिम लीग ने कहा मुझे इसमें कहीं पाकिस्तान नहीं दिख रहा है, and that's why we are rejecting this offer. मुस्लिम लीग को सीधा पाकिस्तान चाहिए, so this offer was rejected. This offer was rejected. Got it? I hope you have got this point. ये बात आपको समझ में आई? इसके बाद now the next part we are going to discuss, that is also very much important. ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ओवर। ठीक है, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ओवर एंड नाउ व्हाट हैपेंस, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो राइट दिस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर
1939 to 1945. Quit India movement was also over 1942 to 1945. Second World War was over. Quit India movement was over. अब एक नई यहाँ पे वो है, वो क्या है कि देखो, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया दे वर सपोर्टेड बाय विच कंट्री? यूएस. अब इस इक्वेशन को आपको समझना है. दे वर सपोर्टेड बाय यूएस एंड व्हेन यूएस इंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएस अगर इंटर नहीं किया होता तो ब्रिटेन के सामने प्रॉब्लम हो जाती. व्हेन यूएस इंटर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट क्लियर्ड इट्स वॉर एम्स. वॉर एम्स और वॉर ऑब्जेक्टिव्स को यूएस ने क्लियर किया था. यूएस क्लियर्ड इट्स वॉर एम्स और वॉर ऑब्जेक्टिव्स. यूएस एंटर्ड द वॉर नॉट टू सपोर्ट ब्रिटेन. ऐसा नहीं कि वो ब्रिटेन को सपोर्ट करने उतरा, उसने साफ साफ कहा यूएस एंटर्ड द वॉर फॉर व्हाट? टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, टू प्रोटेक्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज, टू फाइट अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म. ये सब के लिए वो एंटर किया था. द वॉर एम वाज वेरी क्लियर. नाउ these countries are victorious. Now do you think that US will mount pressure on these countries? US का शुरू से स्टैंड क्या है? नो टू इंपीरियलिज्म and no to colonialism. No to imperialism, no to colonialism. This is the stand of US. No to imperialism, no to colonialism. And when US entered Second World War, it entered the war to protect what? Democracy and humanity. Democracy and humanity. दूसरी चीज, when it entered the war, it asked the countries. देखो, colonialism में नंबर 1 रैंक किसका था? फर्स्ट रैंक ब्रिटेन का था और सेकेंड रैंक किसका था? फ्रांस का. Which country was having largest number of colonies? Britain. Which country was having second largest number of colonies? France. और यूएस ने क्या कहा था कि एंटी इंपेरियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म. तो यूएस एंटर्ड द वॉर. एंटी इंपेरियलिज्म, दिस इज द आइडियोलॉजी. एंटी कॉलोनियलिज्म, दिस इज द आइडियोलॉजी. नाउ यूएस विल माउंट प्रेशर ऑन दीज नेशंस कि आपको क्या करना है? यू विल हैव टू गिव राइट्स टू द पीपल ऑफ कॉलोनीज. राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन. कॉलोनीज को फ्री करो. और इसमें यूएस का भी अपना एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो आप समझ पा रहे हो कि अगर कॉलोनीज फ्री हो जाएंगी तो वो अपना इकोनॉमिक रिलेशन जिस कंट्री के साथ चाहे रख सकती है. एंड नाउ यूएस इज अ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन. यूएस को भी तो मार्केट चाहिए. तो दैट्स व्हाई यूएस इज प्रेशराइजिंग. ऑन द अदर साइड, रशियाज ओपिनियन वाज व्हाट? रशिया का भी सीधा था नो टू. रशिया वाज सेइंग नो टू all forms of exploitation. All forms of exploitation. No to all forms of exploitation. No colonialism, no imperialism. ये रशिया का भी अप्रोच था. ठीक है. This was the approach of Russia also. और ब्रिटेन एंड फ्रांस वर द मेन पार्टिसिपेंट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो. 2 वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद इनकी हालत खराब हो चुकी थी. ओके. देयर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी was affected since they were the main participants in first and second world war. Now what will happen? अब 1945 के बाद जो पावर डायनेमिक्स है वो किसके फेवर में शिफ्ट कर रही है? ये सब आप लोग जानते हो. बाइपोलैरिटी. एक सेंटर क्या हो जाएगा? यूएस. दूसरा सेंटर क्या हो जाएगा? यूएसएसआर. नाउ इन दिस सिचुएशन देयर विल बी इंटरनेशनल प्रेशर ऑन ब्रिटेन एंड फ्रांस कि आप कॉलोनीज में क्या करो? रिफॉर्म्स लेके आओ, लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दो और कोशिश करो कॉलोनीज को फ्री करने की. ठीक है. So there is a pressure on the British government. Second World War is over, and now British government will do what? Okay, the viceroy was Lord Wavell at this time. Lord Wavell was the viceroy. Write this. Lord Wavell was the viceroy, and Wavell was asked to design a plan to solve the deadlock between INC and British government. ठीक है. Wavell से कहा गया कि एक प्लान डिजाइन करो, and this plan, okay, should be aimed for solving the deadlock between INC and British government. ठीक है. इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए आप एक प्लान डिजाइन करो. इज इट क्लियर? वेवेल वाज आस्क्ड टू डू सो. एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ओवर. क्विट इंडिया मूवमेंट इज ओवर. नाउ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स वेर रिलीज्ड. सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया.
आईएनसी के सारे लीडर्स कहाँ थे? जेल में थे, सबको बाहर किया गया और कहा गया कि मिलिए शिमला में। शिमला में मौसम अच्छा रहता है, बताइए आपको। और शिमला में मिलिए, फिर क्या डिस्कस किया जाएगा आपके साथ? कौन सा प्लान डिस्कस किया जाएगा? वॉवेल प्लान। इज इट क्लियर? सो दिस वॉवेल प्लान, ओके, will be discussed in a conference in Shimla that is called Shimla conference, ठीक है ना? So the same Wavell plan was discussed in a conference in Shimla. The same Wavell plan will be discussed in a conference in Shimla and that is called Shimla conference, ठीक है ना? तो ये प्लान वैसे 1945 में रिलीज हुआ, जून में रिलीज हुआ, 14th जून को रिलीज हुआ और 25th जून को द सेम प्लान was discussed in शिमला। तो ये डेट नहीं याद रखना है, क्योंकि याद रखोगे तो भूल जाओगे एग्जामिनेशन हॉल तक, तो पहले ही जान लो कि भूल जाओगे। तो क्या करना है? रिमेंबर 1945। क्लियर? वेवेल प्लान विल बी डिस्कस्ड इन शिमला कॉन्फ्रेंस। अब उस प्लान में क्या कहा गया था? ओके, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्विट इंडिया मूवमेंट में हमने मांगा क्या था? कि अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ दें, दे शुड लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड, वी विल डिसाइड व्हाट टू डू विद इंडिया। ज्यादा हमारा भला करने की जरूरत नहीं है, आप बस हिंदुस्तान से चले जाओ, यही मांगा था ना? नाउ व्हाट इज द प्लान? वॉवेल प्लान, राइट दिस। प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस या ऑफर, व्हाट आर द प्रोविजंस और ऑफर्स इन दिस वॉवेल प्लान? प्रोविजन या ऑफर क्या है? पहला ऑफर क्या है? दे आर सेइंग दैट, ओके, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सीट्स विल बी इंक्रीज्ड एंड न्यू मेंबर्स विल बी एडेड, दीज न्यू मेंबर्स विल बी इंडियंस, ठीक है? एक्सपेंशन, नंबर ऑफ सीट्स विल बी इंक्रीज्ड, न्यू मेंबर्स विल बी एडेड, यही मांग रहे थे क्या हम? ये तो बात वही हो गई, लेन लिथगो से चले थे फिर वही पहुंच गए। व्हाट इज सेइंग? गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल सीट्स विल बी इंक्रीज, न्यू मेंबर्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड, दीस न्यू मेंबर्स विल बी इंडियंस। तो कांग्रेस के नेता बड़े नाराज हुए, दीवार में दो चार बार सर पटका, कहा यार ये फिर बेवकूफ बनाने के लिए शिमला बुला लिया हम लोगों को, ठीक है? ये थोड़ी ना मांग रहे थे हम तो आजादी मांग रहे थे, वी आर सिटिंग हियर सो दैट वी विल गेट इंडिपेंडेंस, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, राइट? सेकंड पॉइंट, और क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, देखो कितने होशियार थे अंग्रेज, कह रहा है कि दिस गवर्नर जनरल विल बी ब्रिटिश, ठीक है? और इसमें एक ऑफिसर होगा कमांडर इन चीफ, ये ब्रिटिश होगा, और जो कमांडर इन चीफ होता है ये ही विल टेक ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग वॉर, वॉर से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजंस कौन लेगा? कमांडर इन चीफ। का इन दो लोगों को छोड़कर बाकी सारे के सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे, ठीक है? Apart from these two members, all members of the executive council, remaining all members of executive councils will be Indians. Governor General will have the veto power, but he will not use it unnecessarily. ठीक है? गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर होगा, लेकिन वो बेमतलब का यूज नहीं करेगा, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि वो बेमतलब का यूज ना करे, ओके? सो दिस इज द स्मार्टेस्ट ऑफ द ब्रिटिश, व्हाट दे आर ऑफरिंग, ठीक है? अब बताओ, आप खुद रहोगे तो ये एक्सेप्ट करोगे? आपने 3 साल तक एक मूवमेंट किया जिसमें करो भाई हिंदुस्तान से चले जाओ, अब हमें तुम्हारे और हेल्प की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत नहीं, बट नहीं, हम तो हेल्प करेंगे, हम गाइड करेंगे आपको, ठीक है? मैं अपना टाइम याद करता हूँ, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो कोचिंग वाले पेज से तो हो गए, सबको गुजरना ही पड़ता है, तो क्लास के बाद किसी टीचर से अगर कोई पीवाईक्यू पूछ लो तो वो कहता था ये सब मैंने नहीं डिस्कस करता, ठीक है, ये खुद से कर लो। और आजकल मैं देख रहा हूँ बड़े से बड़े टीचर आके पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, बेटा इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दे रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है? टाइम ये आ गया, पहले लोग एक क्वेश्चन एक डाउट नहीं एड्रेस करते थे, एंड नाउ, ठीक है, तो सिचुएशन हैज चेंज्ड हियर। यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? अंग्रेज नहीं बदले, सब कुछ बदल गया, अंग्रेज बदलने को तैयार नहीं है, ओके? उनका मूड वही है, दिस इज द पॉइंट हियर। नाउ राइट थर्ड थर्ड पॉइंट, लिख लिया ना आपने? ओके, तीसरी बात वो क्या कह रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग दैट इन दिस काउंसिल, इन दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर देखो झगड़ा लगाने वाला फॉर्मूला,
there will be equal number of Hindus and equal number of Muslim members. देखो झगड़ा लगा दिया ना, कहा बाकी सारे के सारे मेंबर्स क्या होंगे, इंडियंस होंगे। फिर क्या कहा, इन इंडियन मेंबर्स में क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ हिंदू मेंबर्स, इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम मेंबर्स। ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट, इक्वल नंबर ऑफ हिंदू मेंबर्स, इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम मेंबर्स, इक्वल नंबर ऑफ हिंदू मेंबर्स, इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम मेंबर्स। ठीक है, एक्सेट्रा। और पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूं बिकॉज ये एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता है। व्हाट इज सिंपल आइडिया, देयर आर सो मेनी अदर प्रोविजंस आल्सो। एक आइडिया आपने क्या देखा कि हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, बहुत सीधी सी बात, हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला। आप क्या ऑफर कर रहे हो, या ये थोड़ी ना हम मांग रहे थे कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बढ़ाओ। और सबसे बड़ी बात, कितने मतलब ये समझो कि बदतमीज हैं, ये क्या कर रहे हैं। हम किस बात से नाराज हैं 1939 से, कि वॉर डिसीजंस किसको लेना चाहिए, इंडियंस को। You should ask Indians that India should participate in war or not. And 1945 they are saying what? That commander in chief कौन होगा? ब्रिटेन होगा, and he will take important decisions regarding war. ठीक है, तो इससे आप समझ पा रहे हो कि ब्रिटिश आउटलुक कैसा था, राइट? दे वेर अनविलिंग। यहां तक तो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो अभी भारत को आजाद करने के पक्ष में नहीं है। दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ ट्रांसफरिंग पावर टू इंडिया। वो चाहते हैं इंडिया में कुछ और दिन बने रहे। ओके, this is their idea. So what will happen? This Simla conference verbal plan will be successful or will be failed? It will be failed. So write this, verbal plan failed and Simla conference was not successful. Write this, verbal plan failed and Simla conference was not successful. Verbal plan failed and Simla conference was not successful in solving the deadlock between INC and Muslim League. Verbal plan fail हो गया, Simla conference was not successful in solving the deadlock between INC and Muslim. INC and British government. Sorry, it was not successful in solving the deadlock between INC and British government. ये deadlock को solve नहीं कर पाया. Got it? Now we are coming to the next important part. And what is the next important part? Okay, तो देखो. Now in Britain, there will be change in political power. Read this. In Britain, there will be change in political power. अब ब्रिटेन में सरकार बदलती है. And here, Labour Party comes to power. 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 एक बात हमेशा याद रखना कि in India's independence there was also important role of international factors. And here what you are learning, those international factors. कि ब्रिटेन में क्या हुआ? There was change in political power in 1945. 1945 में there was change in political power. Month was July. और देखो वर्बल प्लान कब है? जून में है. और यहाँ change in political power in the month of July, Labour Party comes to power, and here this party was led by Clement Attlee. Now there is a new British PM, that is Clement Attlee, and this party, Labour Party, was sympathetic. This party was sympathetic for India's demand for independence. India's डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, भारत के इंडिपेंडेंस की डिमांड के लिए दिस पार्टी वाज सिंपैथेटिक फॉर इंडियाज डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस. वेरी सिंपल. ठीक है, गॉट इट. क्लेमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड दे वर सिंपैथेटिक. तो देखो, द न्यू पॉलिटिकल पावर इन ब्रिटेन, new party which is in power is sympathetic for India's demand of independence, and at the same time what we see, that international pressure that was mounted specially by US, also by यूएसएसआर, रशिया, और इंटरनेशनल प्रेशर क्या है कि भाई किस चीज को प्रमोट करना है, तो एंटी इंपेरियलिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म. यू हैव टू प्रमोट दिस एंटी इंपेरियलिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म. ठीक है ना, तो देयर वाज इंटरनेशनल प्रेशर, चेंज इन पॉलिटिकल पावर इन ब्रिटेन. ठीक है, प्लस देयर इज वन मोर टॉपिक दैट आई विल डिस्कस विथ यू लेटर, एंड दैट इज, राइट दिस, आईएनए मूवमेंट. आईएनए movement, pressure mounted by the INA movement. Read this, pressure mounted by INA movement. There was also the pressure mounted by INA movement. Pressure mounted by INA movement. INA movement we will discuss later. ठीक है. Finally, right? Finally, this new government
will send cabinet mission to India. Finally, this new government will send a mission to India, and that is known as Cabinet Mission 1946. इंडिया भेजा गया एक मिशन को, और ये मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन को भेजा किसने था? तो क्लीमेंट एटली की सरकार ने भेजा था। क्लीमेंट एटली की सरकार किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। दिस लेबर पार्टी गवर्नमेंट वाज सिंपैथेटिक टू इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो व्हेन दिस, अच्छा देखो, कैबिनेट मिशन, 3 members of British Parliament, cabinet rank ministers were sent here. कैबिनेट का मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स, 3 cabinet ministers of British Parliament were sent in India. 3 cabinet ministers of British Parliament were sent to India. ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 cabinet ministers को भेजा गया यहाँ, और वो नाम क्या था? व्हाट वाज दैट नेम ऑफ 3 cabinet ministers? तो पहला नाम क्या है? पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। दिस इज द फर्स्ट नेम, सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। द सेकेंड नेम इज स्टैफर्ड क्रिप्स। द सेकेंड नेम इज स्टैफर्ड क्रिप्स, एंड द थर्ड नेम इज A.V. Alexander. सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड A.V. Alexander, ठीक है। दीज आर 3 cabinet ministers of British Parliament who were sent to India, ठीक है। And that is why this mission is called what? Cabinet mission. और कैबिनेट मिशन का टास्क क्या है? द सेम टास्क, टू सॉल्व द डेडलॉक बिटवीन आईएनसी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। सो द टास्क ऑफ द कैबिनेट मिशन वाज सॉल्विंग डेडलॉक बिटवीन आईएनसी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। आईएनसी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच डेडलॉक को सॉल्व करना, राइट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? The second objective was to complete the peaceful transfer of power to India. That is very important. To complete the process of peaceful transfer of power to India. To complete the process of peaceful transfer of power to India. To complete the process of peaceful transfer of power to India. इसलिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। अब आप खुद गेस करो कि कैबिनेट मिशन में जो प्रोविजंस होंगे वो सीरियस टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस होंगे कि नहीं? यस, दे विल बी द सीरियस टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस। अच्छा, एक और बात सोचो आप, ठीक है। कैबिनेट मिशन मतलब क्लीमेंट एटली की जो गवर्नमेंट है वो चाहती, ठीक है, इंडिया को अब पावर ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो क्या अचानक से उनके मन में अचानक अंग्रेज इतने अच्छे हो गए कि वो चाहते कि पावर ट्रांसफर कर देना चाहिए? नहीं। इंटरनेशनल प्रेशर इज वन फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है? देयर वाज क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडिया जो 3 साल तक चला था, उसमें लिमिटेड वायलेंसेस यूज हुए। अच्छा बताओ, इन ऑर्डर टू सप्रेस द मूवमेंट यू नीड व्हाट? मिलिट्री, एंड देयर विल बी मिलिट्री एक्सपेंसेस। तो अब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोलॉन्ग मूवमेंट्स, ऐसे प्रोलॉन्ग मूवमेंट्स हो रहे थे जिसमें यूज ऑफ वायलेंस वाज देयर, एंड इन ऑर्डर टू सप्रेस दैट वायलेंस ब्रिटिश विल नीड व्हाट? मिलिट्री। सो देयर विल बी मिलिट्री एक्सपेंसेस, और अंग्रेजों के पास पैसा भी इस समय नहीं था। ओके, they have exhausted their financial resources where? In fighting second world war, पैसा भी वो खर्च कर चुके हैं। So in this situation, what is the best solution for them? To give or to transfer power to India. But will they have this outlook कि अगर हम इंडिया को पावर ट्रांसफर करें और पावर ट्रांसफर होने के बाद अगर इंडिया वीक और डिवाइडेड रहेगा, तो इन फॉर फ्यूचर हेल्प एंड सपोर्ट इंडिया विल लुक टुवर्ड्स ब्रिटेन। तो वी कैन मेक इनडायरेक्ट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? एंड दिस इज व्हाट? नियो कॉलोनियलिज्म। यही तो है नियो कॉलोनियलिज्म। 1947 तक इंडिया वाज अ कॉलोनी। अगर मान लो इंडिया 8-10 टुकड़ों में बढ़ जाता, और अगर अपनी हेल्प और सपोर्ट के लिए हम ब्रिटेन की तरफ देखते रहते, ब्रिटेन यहाँ पैसे इन्वेस्ट करता है, इंफ्रा डेवलप करता, बट उसके बदले में वो इंडिया को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करता कि नहीं करता? तो बिना इंडिया को कॉलोनी बनाए हुए इंडिया को फ्यूचर में एक्सप्लॉइट कैसे किया जा सकता था? नियो कॉलोनियलिज्म से। और नियो कॉलोनियलिज्म क्या है? कि इंडिया को इंडिपेंडेंस तो दो, लेकिन इसको वीक और डिवाइडेड इंडिया बना दो। तो ये ब्रिटिश का आउटलुक था।
इसका मतलब कैबिनेट मिशन विल कम टू इंडिया, but the British will have an outlook that we have to give independence to India, but India must be weak and divided, so that in future it will look towards Britain for help and support, and in this way we will be able to make what, indirect control and influence over the India. On the other side, what is the outlook of Indian National Congress? Indian National Congress क्या सोच रही है? That when power will be transferred to India, the power should be transferred to a single, okay, entity, that is India, and then India will decide that what to do the next, कि हमें पाकिस्तान देना है कि नहीं, प्रिंसली स्टेट्स को कैसे रखना है, दिस ऑल विल बी डिसाइडेड बाय इंडिया. बट जैसे ही आप ये बात कहोगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट विल से दैट नो, इफ वी विल डू दिस वी विल बी डूइंग इनजस्टिस विद द माइनॉरिटीज, क्योंकि माइनॉरिटीज की डिमांड क्या है, पाकिस्तान. मुस्लिम लीग विल से हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, वी डिमांड फॉर पाकिस्तान. तो मुस्लिम लीग पहले खड़ी थी कि आजाद करो लेकिन पहले पाकिस्तान दो, और अंग्रेज हंस रहे थे, कहा यही तो चाहिए था हमें. दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट्स थे, एंड देयर नंबर वाज मोर देन 550, 550 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, एंड दे वर सेइंग कि भाई वी वांट टू रिटेन आवर राइट्स एंड प्रिविलेजेस, we don't want to be a part of a union where we will have to surrender our rights and privilege, we don't want to be a part of it. और दोबारा मजा आ रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि सही है, ये तो 550 से ज्यादा है, and they are asking that we want our rights to be maintained, our privileges to be maintained. Muslim League is saying we want a separate nation. So in this way India will be weak and divided, and in future it will keep serving the British interest. इतना कुछ जो इंडिया में बना के गए, तुमको क्या लग रहा है एक झटके में वो छोड़ के चले जाएंगे? वो चाहेंगे ना कि रिलेशन बना रहे, ठीक है, एंड दिस दे आर प्लानिंग, एंड विद दिस पर्पस कैबिनेट मिशन रीचेस इंडिया. तो उसका एक नोबल पर्पस भी है, दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया कि देखो हमने कैबिनेट मिशन को भेजा ताकि हम इंडिया में क्या चाहते हैं, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है. तो एक तरह से वो जो अपना एक सिविलाइजिंग मिशन वाला जो नोशन लेके चल रहे थे, उसको भी लेके चल रहे थे ढाल बना के कि देखो अंग्रेज कितने अच्छे लोग हैं, वी आर गोइंग टू डू व्हाट, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया. नाउ द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया. नाउ राइट दिस कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान क्या है, what is the cabinet mission plan, this we are going to discuss, and write this, very important for prelims and mains. यहाँ लिख लेना, each and every provision is important for prelims as well as mains examination. मैं यहाँ मेंस के क्वेश्चंस और फॉर्मेट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, बिकॉज वी विल डू इट सेपरेटली, ठीक है ना. तो आप पूरा थीम रिवाइज भी कर लोगे, एंड व्हेन विल डू द मेंस क्वेश्चन ना, तो चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी. ओके, व्हाट यू हैव लर्न यू विल बी एबल टू रिवाइज. तो देखो, we can divide it into three parts, right? This cabinet mission plan can be divided into three parts. तीन हिस्सों में बांट के देख सकते हैं. ओके, read this. Point 1, outlook of cabinet mission. Outlook of cabinet mission towards the demand for a separate nation Pakistan. Separate nation Pakistan. This is part 1. Outlook of cabinet mission towards the demand for a separate nation Pakistan. This is point 1. Outlook of cabinet mission, okay, towards the demand for a, okay, separate nation Pakistan. Right. Second point, short term plan. Short term plan and long term plan. Short term plan and long term plan. So the cabinet mission plan can be divided into three parts. Okay. What is the outlook of cabinet mission towards the demand for Pakistan, then short term plan and long term plan, ठीक है ना. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बनती है वो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही बनती है, ठीक है. तो यहाँ पे पॉलिटी का भी एक टॉपिक रिलेट होगा, राइट. तो देखो, व्हाट कैबिनेट मिशन सेड अबाउट पाकिस्तान. कैबिनेट मिशन सेड दैट द डिमांड फॉर पाकिस्तान इज नॉट वैलिड एंड जेन्युइन डिमांड. ओके, इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान. पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया. लेकिन यहाँ खुश नहीं हो जाना है, जो मैंने पहले बताया था आपको कि वो क्या चाहते हैं, वीक एंड डिवाइडेड इंडिया. वो है, कैसे है ये बाद में आप समझोगे. पहली बात आपको क्या समझना है, रिजेक्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान. एंड व्हाट इट सेड दैट डिमांड फॉर पाकिस्तान मींस व्हाट, यू आर आस्किंग फॉर अ नेशन पाकिस्तान, बट दिस नेशन विल बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. दो टुकड़ों में बटा होगा. एक कहाँ होगा, ईस्टर्न पाकिस्तान, दूसरा कहाँ होगा, वेस्टर्न पाकिस्तान.
एंड बोथ विल बी 660 माइल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग. यानी यू वांट अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान एंड दिस इज नॉट one part, this is two divided halves. Okay, and in future you cannot maintain your integrity. In future there are chances कि एक पार्ट क्या हो जाएगा, पाकिस्तान से अलग हो जाएगा. कैसे मेंटेन कर पाओगे इंटीग्रिटी? और वही हुआ, पाकिस्तान बनाया गया. वन इज ईस्टर्न पाकिस्तान, सेकंड इज वेस्टर्न पाकिस्तान. ईस्टर्न पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होके क्या बन गया, बांग्लादेश. ठीक है, मेरी बात समझ गया ना? तो कैबिनेट मिशन प्लान ने ये बात बताया था कि ये फीजिबल डिमांड नहीं है. दिस इज नॉट अ फीजिबल डिमांड. You are demanding for a separate nation Pakistan, which is divided into two halves, just situated far away from each other, 660 miles away from each other. And in this way, it will be very difficult to maintain the integrity of this nation. Okay? In future, your integrity will be compromised. And the fear was true. The same happened. So it rejected the demand for Pakistan. उसने ये भी कहा कि separate nation Pakistan demands means what? केवल टेरिटरीज को डिवाइड करोगे, माउंटेन्स हैं, रिवर वाटर्स है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू डिवाइड, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिमार्केट द लाइंस. ठीक है, देयर आर इंडस्ट्रीज, जूट मिल्स एंड के सोर्सेज जैसे बंगाल में, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिमार्केट द लाइन. ठीक है, एंड इफ यू विल डू दिस, this will create, okay, long term challenges for both these countries. This will create long term hostilities for both these countries. दोनों देशों के बीच में लंबे समय तक इन मुद्दों पे क्या चलता रहेगा, जो हो रहा है. बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं कि नहीं अपने पास, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं कि नहीं, सब तो है ही है. ठीक है, ग्लेशियर्स डिस्प्यूट्स भी हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं. So there are a lot of disputes. So cabinet mission negated towards it and rejected the demand for a separate nation पाकिस्तान. सेपरेट नेशन पाकिस्तान की डिमांड को सीधा सीधा क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. ओके, तो राइट दिस पॉइंट. ठीक है, एक पार्ट नोट कर लो, और ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है. सिंपल सा बात याद रखना है, कैबिनेट मिशन अप्रूव्ड द डिमांड फॉर पाकिस्तान और रिजेक्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान. रिजेक्टेड, हमेशा याद रखना. राइट दिस पॉइंट, दैट कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान. कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट नेशन पाकिस्तान. Cabinet mission rejected the demand for separate nation Pakistan. Now, what are the grounds for rejection? Cabinet mission rejected for separate nation Pakistan. Grounds of rejection क्या है? तो ऐसे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. This is what? Muslim majority areas in eastern part, and this is what? Muslim majority areas in western part. Both situated 660 miles away from each other. Okay, so the demand for Pakistan is what? You are asking for a new country Pakistan, but it is divided into two halves. But it is divided into two halves. It is divided into two halves. Clear? And for communication, transportation, you will have to be dependent on India. Okay, it will be very difficult, right? This. Okay, so for communication, transportation, okay, you will have to be dependent on India. Okay, and division of boundaries will be very much difficult because there are natural frontiers, rivers, mountains, and so many things. Okay, so this will create long term challenges also for both these two nations, and there is a greater probability that in future the integrity of both these two parts cannot be maintained. ठीक है ना? There is a greater probability that in future the integrity of both these parts could not be maintained. ठीक है, आगे चल के ये हो गया पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी. ठीक है, तो दोनों को मिला दो, दिस इज पाकिस्तान, बट दोनों अलग है, तो बहुत प्रॉब्लम होगा इसमें. देयर विल लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट्स बिटवीन बोथ दीज टू पार्ट्स, लंबे समय तक डिस्प्यूट्स भी होंगे. ठीक है, बॉर्डर डिमार्केशन डिफिकल्ट होगा, रिसोर्सेज का बंटवारा करना डिफिकल्ट होगा. इज इट क्लियर आकाश? कितना प्रैक्टिकल है दिस? ये तो आइडिया बड़ा अच्छा है, दिस आइडिया इज प्रैक्टिकल. दूसरी बात क्या कही कैबिनेट मिशन ने, समझो इस बात को, दैट व्हाई देयर इज डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान. क्यों डिमांड है फॉर अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान? ओके, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज, इसलिए तो डिमांड कर रहे हो. व्हाई देयर इज अ डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन ऑफ पाकिस्तान? व्हाई देयर इज अ डिमांड फॉर सेपरेट नेशन पाकिस्तान? अलग नेशन पाकिस्तान की जरूरत क्यों है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज, टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज, इसीलिए तो आप कर रहे हो, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज. ठीक है,
टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी, इसीलिए डिमांड है ना. नाउ व्हाट कैबिनेट मिशन सेइंग, कैबिनेट मिशन इज सेइंग दैट सपोज दिस इज मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, मान लेते हैं दिस इज मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, and if you are saying that if A plus B will be made Pakistan, then what will happen? In A plus B, the rights of, देखो इंडिया के in context of all India, Muslims are minority. So here this Muslim minority, okay, problems challenges दूर हो जाएंगे, ठीक है ना, हमें हमारा अलग नेशन मिल जाएगा. कैबिनेट मिशन इज सेइंग व्हाट, इन दीज मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज अदर माइनॉरिटीज लीव और नॉट. आप ये बताओ यहाँ पे दूसरी माइनॉरिटीज रहती हैं कि नहीं रहती है ना, कि पूरा का पूरा पॉपुलेशन मुस्लिम्स का है, पूरा पॉपुलेशन मुस्लिम्स का तो है नहीं, देयर आर अदर माइनॉरिटीज एज वेल. तो कैबिनेट मिशन इज सेइंग दैट इफ वी विल गिव अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान, विल इट सॉल्व द माइनॉरिटी प्रॉब्लम? नो. ये माइनॉरिटी प्रॉब्लम को कहां सॉल्व कर रहा है, कोई लॉजिक है? पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हु इज माइनॉरिटी, मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी, एंड यू आर सेइंग कि पाकिस्तान मिल जाएगा तो मुस्लिम माइनॉरिटी की चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे. चलो दिया पाकिस्तान, लेकिन जो पाकिस्तान आपको मिला यहां भी तो माइनॉरिटीज हैं. क्या यहाँ हिंदू माइनॉरिटी नहीं होगी, सिख माइनॉरिटी नहीं होगी, दूसरी माइनॉरिटीज नहीं होगी? तो कहा नाउ हु विल सॉल्व दिस माइनॉरिटी क्वेश्चन. कल को वो भी कह सकते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक है. तो क्या ये माइनॉरिटी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से यहाँ पे नए कंट्री बनाओगे क्या, बताओ, बनाओगे? ये सॉल्यूशन है. सो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन इज क्रिएटेड अ न्यू प्रॉब्लम और चैलेंज, दिस इज नॉट सॉल्यूशन एट ऑल. आप सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हो और सॉल्यूशन में ही नया बखेड़ा खड़ा कर दे रहे हो, तो सॉल्यूशन कहाँ हुआ? सो दिस विल नॉट द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज का, इससे मुस्लिम माइनॉरिटी का प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व नहीं हो रहा है. Okay, if we'll give a separate nation Pakistan, then the question of other minorities will arise, and while finding a solution, if we are creating a new problem, that is not a solution at all. So this will not solve the Muslim minority question, and in this way, okay, it rejected the demand for, ठीक है, इसने क्या किया, पाकिस्तान के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया. तो ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये आर्ग्यूमेंट भी बहुत अच्छा है, दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो गुड, कि माइनॉरिटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, ठीक है. तो दिस इज ऑन दिस बेसिस इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान. नाउ द लॉन्ग टर्म challenges and short term challenges, the provisions are very important. We will enter into this part tomorrow, कल डिस्कस करेंगे. प्लस फ्रॉम टुडे आई विल कीप अपलोडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस, मतलब अपलोडिंग इन द सेंस कि वो लाइव स्ट्रीम होगा. तो 5 वीडियोस तो मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं यूट्यूब पे, वर्ल्ड हिस्ट्री की लेक्चर नंबर 1 to 5. तो अभी शुरुआत वार्म अप उसी से होगा, लेक्चर नंबर 1 to 5 5 डेज तक वही चलेगा, और उसके बाद कंटिन्यूअसली आई विल पोस्ट ऑल द वीडियोस, बट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइव स्ट्रीम, ठीक है ना. तो अगर किसी का कोई लेक्चर छूटा होगा तो वहां से आप कवर कर लेना, ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट अदर्स टू कम एंड वॉच दोज लेक्चर्स. तो वो केवल लाइव स्ट्रीमिंग होगी, उसके बाद वो वीडियो नहीं रहेगी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना. तो आप देख सकते हो 9 PM to 10:30 PM, ठीक है ना. वी विल डू लाइव स्ट्रीम. प्लस आई हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड द लेक्चर्स ऑफ वेरियस बुक्स, मतलब दिस इज इन प्रोसेस, आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग इट, ठीक है. तो मेरी क्लास चूंकि आपने फाउंडेशन क्लास कर ली, तो आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड एवरीथिंग, ठीक है ना. बट स्टिल अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिपान चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय, स्पेक्ट्रम बुक, तो उसमें से अगर कोई पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ना होगा, तो द लेक्चर्स ऑफ ऑल दीज बुक्स विल बी रिकॉर्डेड वेरी सून ऑन द माय यूट्यूब चैनल, ठीक है ना. पूरी ये स्पेक्ट्रम वहां पढ़ा दूंगा, मतलब जो जरूरत नहीं है, मेरी क्लास अगर आपने कर ली तो जरूरत नहीं है, ठीक है. बट फिर भी अगर लगे कि यार थोड़ा कोई चैप्टर पढ़ ले, तो हालांकि मत पढ़ना, ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूंगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है. बट फिर भी अगर जिसको स्पेक्ट्रम पढ़ना हो आप बता सकते हो, पढ़ लो वहां से, ठीक है, जो बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, ठीक है. शेखर बंदोपाध्याय, बिपान चंद्रा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो, ठीक है. तो दोज ऑल बुक्स विल बी अपलोडेड वेरी सून, ठीक है ना. तो वर्ल्ड हिस्ट्री जिसका जो छूटा होगा वो लेक्चर आप कर लेना. तो सीक्वेंसिंग डेली देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा. तो जो क्लास अगर स्किप हुई है, यू कैन अटेंड दोस लेक्चर्स, ठीक है. कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम.